فیضان اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ایک اور غیر مقلد یعنی اندھا مقلد صادق بھائی سے بات چیت ہوئی اس کی، جس کا نام ہے ساجد اہل حدث۔ یہ حیدرآباد کا رہنے والا ہے، لگ بھگ 53 سال کا ہے، بتا رہا تھا۔ تو اب دیکھیے، صادق بھائی نے اس سے جتنی بھی بات چیت کی وہ سارے کے سارے حوالوں کے ساتھ کی، اور اس نے جتنی بھی بکواس کی بنا تحقیق بنا حوالے کی، صرف ایک کتاب کا نام لیا، بنیاد الطالبین کا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی صادق بھائی نے اسی کتاب سے اس کے منہ پہ ایسے زور زور تماچے مارے، وہ آپ آگے سنیں گے۔ اس کے بعد اس نے بیچ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ہجڑے تھے۔ صادق بھائی نے اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا، وہ آپ سن لیجئے گا آگے۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہے، تو میں صرف شارٹ میں اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کتنے بڑے اندھے مقلد ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس میں بھی ہم نے ثابت کیا تھا، اس کے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ویڈیو ڈالی ہے۔ تو دیکھیے، ان کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ ان کے مولویوں نے جو ان کو رٹا کے رکھا ہے، پتہ نہیں کون سی کتابوں میں کیا کیا ان کو گھما پھرا کے الٹا سیدھا پڑھا دیا ہے، اسی کو یہ لوگ حق سمجھتے ہیں، اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ اندھی تکلیف نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ صادق بھائی اس کو حوالے پہ حوالے دیے جا رہے ہیں، اور یہ بنا حوالے کے بات چیت کر رہا ہے۔ جس طرح ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی اس نے ایمان نہیں لایا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے اس کے دل پہ مہر لگا دی تھی کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ وہابی بھی ہے، اس کو اتنے سارے حوالے دیے صادق بھائی نے، پھر بھی یہ آخر تک اپنی رٹ لگائے رکھا تھا، اور وہاں سے وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل پہ بھی مہر لگ چکی ہے، یہ بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو بس یہی میں آپ سے کہنا گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور ہر اہل حدیث کے پاس بھیجو گے تو اس کو کہنا کہ اہل حدیث ہی اندھا مقلد ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لو ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اب آگے کی آڈیو سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیں۔ ہاں بولیے، کون بات کریں؟ جی کون بات کریں؟ ہاں بیٹے یہ میں نے ہمارے بات ہوئی رکو تھی نا ذرا میں بات کروں نا۔ پرسوں بات ہوئی تھی، آپ بولے کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں بولیے بھیا۔ آپ بتائیے کیا حال ہے؟ الحمد للہ کا شکر۔ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ کھانا وغیرہ ہو آپ گیا؟ الحمد للہ۔ اور جی ابھی آپ کا نام بھی جی شاہد ہے؟ جی صادق، میرا نام ہے صادق۔ صادق ہے، ہاں بولیے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے، آندھرا میں پردیش سے؟ حیدرآباد سے۔ چلیے اچھی بات ہے۔ تو حضرت آپ اہل حدیث ہیں کیا؟ جی الحمد للہ۔ اچھا، تو اہل حدیث میں آپ کب شامل ہوئے؟ میری میں سمجھتا ہوں کوئی 12-13 سال، 12-13 سال سے، اچھا 13-14 سال سے میں 12-13 مطلب 12-15 کے بیچ میں ہے نا؟ نہ 80 میں ہوا ہوں۔ 87-88 میں؟ ہاں سب سے زیادہ ہو گیا۔ جی 87-88 کا مطلب یہ ہوگا 13 ادھر اور 25 ادھر، سب سے زیادہ ہو گیا۔ ہاں 40 کے قریب ہو گئے تب تو، ہے نا؟ ہاں بولیے۔ چلیے تو اب آپ کی عمر 60-65 اتنی ہوگی میرے خیال سے۔ نہیں میری ابھی تو 53-54 54 54 53-54۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، مطلب 13-15 سال کی عمر میں آپ بن گئے تھے، ہے نا؟ جی ماشاء اللہ۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کیا تھے حضرت آپ؟ پہلے بریلوی کے جیسے مطلب ہمارے پاس بریلوی بول کے نام نہیں ہے، جی جی۔ بس سنی طریقے میں تھے ہم لوگ۔ سنی میں سب مزاروں پہ جانا ہے، یہ وہ سب رہتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کبھی مزاروں پہ نہیں جھکائے۔ ایک بار ایسا ارادہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اذان کی آواز آئی اور نماز پہ چلے گئے تھے، اللہ بچا گیا تھا۔ اچھا چلیے، وہ مسئلہ الگ ہو گیا۔ تو جیسے مطلب کیا دیکھ کر آپ اہل حدیث بنے، کچھ بتائیں گے؟ ہاں اہل حدیث جو فرقہ ہے، اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی اہل حدیث فرقہ نہیں بولا، وہ ایک دین ہے۔ قرآن اور دین ہے؟ حدیث کی بات کرنے، سنیے،
जी फरमाइए। की बात जो करते हैं वो अहले हदीस करते हैं, मैं कैसा बना वो बोल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जी हाँ जी, बताइए। जब मैं 4th 5th में था, उस वक्त हम अरबी पढ़ते थे। हमारे जो मस्जिद के हाफिज साहब थे वो भी सुन्नी मसलक के थे, ठीक है। बिहार के थे वो। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि अलम उठाना बिदत है। वो बिदत क्या है हमको वो भी नहीं मालूम था। वो ठीक। बिदत क्या चीज है हमको वो भी नहीं मालूम था। शिर्क क्या चीज है वो भी नहीं मालूम था वो उम्र में हमको। हम्म। तो हम वो कौन जो अलम बताया आपको? उठाते ना, हाँ, कौन बताया था आपको? एक हाफिज हमारे मस्जिद के इमाम है, हमारे खतीब। मस्जिद है 400 साल पुरानी मस्जिद है। चलो ठीक है, आगे बताइए। तो उन्होंने कहा बिदत है। वो बिदत क्या हमको नहीं, बस वो अल्लम के पास आए, ठहर गए, बोला सपड़ा बजा रहे थे, बोले कि अलम उठाना बिदत है। बिदत वो बिदत क्या है हमको नहीं मालूम। बोले लड़ाई झगड़ा हो गया, हम्म। फिर ऐसी चलते गया। लेकिन अल्लाह ताला रबी से हमको हिदायत बख्शी समझो। ठीक है। फिर मेरे जो उस्ताद है हम्म ख्वाजा साहब है ना अजमेर वाले, हम्म। जी उनके खानदान से आते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात के हैं। जी जी जी। वो खैर आप मदारों पे जाते हैं तो मैं यहाँ भी गए होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। गोगी सागर गए हैं? गोगी सागर, चंदा नूर शाह आलम पीरजादी, वो पीरजादी है नाम उनका। कहाँ पे तो है? मेरे ये कर्नाटक में है। अच्छा, बेंगलुरु तो मैं गया हूँ, लेकिन किस जगह पे है बेंगलुरु में इतना मुझे नहीं मालूम। नहीं, बेंगलुरु में, कर्नाटक में गोगी सागर बोल के है। तो अच्छा। मेरे उस्ताद का ताल्लुक वहीं से है, पूरा पूरा शिजरा उधर से, ख्वाजा 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 से जो अजमेर में है ना, ख्वाजा वो उधर से जी सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ठीक उन्होंने है। सबसे पहले आकर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की दावत दी, किन्होंने? मेरे उस्ताद ने, जो उनके खानदान से रिलेटेड है। और एक उनके भाई है, एक है इकबाल है, एक शहबाज है, दोनों भाई है। वो जी दोनों भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों यहीं हमारे पास, मेरे घर से एक 20 कदम पे उनका घर था। अभी तो पूरे शिफ्ट हो गए वो लोग। तो उन्होंने आके अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम शुरू करे, कुरान और हदीस का। तब से ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, उसी पे कुरान और हदीस पे चलते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हजरत, मैं एक बात बता रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात जी सुनिएगा। जी जैसे कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहीमहुल्लाह के खानदान से अब आते हैं, ठीक है, जी अभी ये जी। कहते हैं। तो आपने उनको, जो उन्होंने दिन लाया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के हिंदुस्तान में, ठीक है नहीं ना? लाए मुल साहब, यही सुन सुनिए। लीजिए, मैं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट नहीं, सुनिए। एक बात मेरी मौका सुन दे रहे लीजिए, तो उसके बाद फिर आप सुन बोलिए। लीजिए। ठीक है, मौका बोलिए, दे, आप बोलिए, अगर पूरा बोलिए। आप, मैंने आपको कितनी प्यार से बात सुना, आपका जी भी ये जी फर्ज जी जी। बनता है कि नहीं मेरी बात हाँ, सुनने? बिल्कुल बराबर बराबर, हाँ सुनिए। हाँ ठीक, आपका भी फर्ज बनता है, फिर मैं सुनूंगा, ऐसा नहीं कि मैं फोन काट दूंगा। जी तो जी उन्होंने जो दीन लाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के, ठीक है ना, जी जी। तो वो दीन को छोड़ करके आपने, वो दीन, हाँ, वो दीन को छोड़ करके आपने फिर दूसरा दीन का क्यों अपना लिया? हम्म, पहली बात, ठीक है ना, जी एक सौ सवाल जी मेरा ये हो गया, ठीक है ना। जी। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिन नहीं लाया, ठीक है ना, जी। आप कह रहे हैं उन्होंने दिन नहीं लाया, मैं बताता हूँ ना, दिन लाया। आप गैर जी हवाले से बात करेंगे, इंशाल्लाह मैं हवाले से बात करूंगा, ठीक जी है। जी 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 देखिए मेरे पास किताब है, जी सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब, जी। फतावे सनाइया है, फतावे सनाइया, मैं आपका हवाला भेज देता हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इंशाल्लाह वो पढ़ लीजिएगा, मैं हवाला आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना। ठीक ठीक। 1 मिनट पहले मैं भेज देता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर मैं इबारत पढ़ देता हूँ, ठीक है। ठीक। जी हाँ, देखिए मैंने आपको भेज दिया, ठीक है ना, जी ठीक। ये हवाला मैंने आपको भेज दिया। अब मैं पढ़ रहा हूँ, फतावा सनाइया, सफ़ा नंबर 151, जिल्द नंबर अव्वल, जी सफ़ा नंबर 151 है, वो मैं आपको भेज दिया हूँ, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, सूफिया अच्छा। इकराम की वजह से इस्लाम में बहुत तरक्की हुई, मसलन जी इस्लाम में इशात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए से, कश्मीर में हजरत सर हिंदी रहमतुल्लाह ताला के जरिए से इस्लाम फैला, दिल्ली में जी हजरत निजामुद्दीन औलिया और मुजद्दिद अल्पसानी रहमतुल्लाह ताला के इस्लाम से फैला। इतने इन लोगों ने, इन सबको आगे रजी अल्लाह ताला ने भी लिखा गया है,
इन लोगों अच्छा। ने, ये जो सूफिया करام औलिया करام ने हम्म पूरा तमाम दुनिया हम्म में जहाँ जहाँ वो गए, हम्म दुनिया के अंदर में, हर दुनिया के कोने कोने में गए, उन्होंने इस्लाम फैलाया। जी ठीक है ना। अब जी। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कोई हम्म देवबंदी बन रहा है, कोई अहले हदीस के नाम से बन रहा है, अपना अपना दिन हम्म छोड़ कर, जो पुराने दिन हम्म, बसे, जो औलिया करम दिन लेकर आते, अच्छा उनको छोड़ करके लोग अपना अच्छा। अपना दिन अपने अकल के मुताबिक, जैसे आपने कहा ना कि किसी हम्म मस्जिद के एक इमाम साहब ने उनको बिदात बोला तो वो मेरे दिमाग में आ गई, हम्म तो आपने तो एक मस्जिद के इमाम की बात मान के पीछे चल रही है, ठीक है हम्म ना। अब हम्म आपके जिम्मेदारी एक बनती है कि आप ऐसी कोई दलील पेश कर दीजिए हम्म आपके पास हो कि औलिया करام ने इस्लाम नहीं फैलाया, जी। दिन नहीं फैलाया। अब हम्म, आपकी जिम्मेदारी बनती है, बराए मेहरबानी, ठीक। ठीक है ना। जी अब मेरी बात फरमाइए। सुनिए। ये जी जो फरमाइए। किताब, मैं ये जो किताब मेरे उस्ताद के पास जो पढ़ा हूँ ना मैं, जी। ये जो किताबें थी, मतलब उनके दादा परदादा से चलती आ रही थी किताबें, कौन तो सी उन किताब? किताबों, कुछ किताबें थे, कुछ नाम है जी किताब का वो, खैर वो लोग खाली कर दिया, ये पूरे यूएस चले गए, कोई पूरा मसला घर नहीं, अगर वीरान हो गया, आपके पास मतलब घर नाम गिर हो तो गया। बताइएगा। इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो उस किताब में मैं उस जमाने में पढ़ा था हम्म, कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह, उससे पहले अब्दुल कादर गिलानी का नाम लेता हूँ। ठीक है। आप लोग जिलानी बोलते हैं, लेकिन उनका नाम, असल नाम जो है अब्दुल कादर गिलानी है। ठीक है। वो इसलिए है, फिर बताता हूँ मैं आपको भी और एक चलिए बात। चलिए, वो कोई मसला नहीं सुनिए, है, वो नहीं आदमी नहीं, में सुनिए आता है। सुनिए सुनिए आप सुनिए। बताइए। अब्दुल कादर उनका नाम है, गीलान शहर आज भी है वो, उसका नाम नहीं ठीक है, बदला मुझे गया इराक मालूम है। में। जी, मुझे उनका नाम मालूम अब्दुल है। कादर गिलानी है, मैं वही गिलानी पढ़ा हूँ मैं उसमें। ठीक है। तो वो जंग की और जहाद की ट्रेनिंग दे के अपने घर पे एक हम्म, निशानी के तौर पे काली झंडी रखने को कहते थे, हम्म, क्योंकि उस वक्त शिया और अंग्रेज बहुत सताते थे। हम्म, तो उन्होंने थी, उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह आने के बाद इराक फतह हुआ। ठीक है। ठीक है, इराक फतह होने के बाद हम्म, मस्जिद अक्सा के लिए उनकी फौज बोली, तो बोले कि नहीं अभी नहीं, अगर हम फिर मस्जिद अक्सा की तरफ जाएंगे तो ये रावजी और अंग्रेज मिलके जो है ना, फिर हमको वही हालत पे लाके छोड़ते, बोल के काटम पीटी वाला जो भी बादशाहों का जो रूल्स था उस पर चलते गए। फिर उसके बाद एक टाइम लाए, टाइम में ये बोले कि जिसको अगर इराक में रहना है हम्म, तो मुसलमान बन के रहे। हम्म, क्या बन के? मुसलमान। मुसलमान बन के रहे। तो उस वक्त ये ख्वाजा साहब वहां से तखलिया हो गए, इराक से हिंदुस्तान में आके पनाह लिए। अब यहाँ आके कई कई करामाता बताए थे, एक सलाम पे 90,000 लोग ईमान लाते, क्या की कहानी, पर मेरे को उससे लेना देना नहीं है, समझे। उनका खानदान पूरी राफजियत से है, क्योंकि मेरे पास शिजरा है, अच्छा। समझे, पूरा सरकार शिजरा ख्वाजा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का। हाँ, उनका खानदान पूरा राफजियत से आया सो है। और ठीक। वो हिजड़े थे, फिर कह रहा हूँ हिजड़े थे, उनके बड़े बड़े छाती थे, एक हाथ से दब बजाते थे। सुनो, ये एक हो गई बात। फिर आपको गारंटी के लिए आज भी बोलता हूँ मैं, आप लोग जो पत्थर की जो चौखट है ना, जहाँ पे जंजीरें लगी हुई थी, जहाँ पे आप लोग जाते, झुक के चले जाते, लेकिन कभी सर उठा के नहीं देखे कभी, उस पे कलमा क्या है आपका? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात है ना। ठीक वहां है। पे आपको कलमा मिलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अली वसीउल्लाह। क्या कलमा मिलेगा आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह अली वसीउल्लाह। वो एक ही नहीं, हम्म, और एक महाराष्ट्र में भी एक, कर्नाटक में और एक खाजा है गुलबर्गा, और एक खाजा है, वही ठीक। खानदान से है, वो भी वही खानदान से है, वो भी हिजड़ई से। उस ठीक। वहां पर भी आपको मिलेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अली वसीउल्लाह। ठीक। समझे भाई। अल्लाह का शुक्र है, हम वो किताबें उस जमाने, क्योंकि उनके दादा यानी मेरे उस्ताद के दादा, तो उनके दादी, बाद में उनकी वालिदा भी, दादी भी जो ना तौहीद पे आए थे, तौहीद पे आ गए थे, तो वो बोलते थे कि मरते वक्त तुम्हारे दादा बोलते थे कि मेरे को पंजे बताओ, पंजे बताओ बोल के। हम्म, समझे, ये खानदान पूरी रावजत से है। और चलिए आप ठीक है। आला हजरत है, आला हजरत है आपके,
चलिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर आला बात नेक्स्ट टाइम में करेंगे। नहीं नहीं, सुनिए ठीक है? सुनिए मेरे भाई, जब बात कर रहे हैं आप तो तो और मुझे एक भी तो 5 उतना मिनट लंबा सुन लो। बोलने का मौका देंगे ना, नहीं नहीं बोलने का दूंगा, मौका देंगे। बराबर दूंगा, अल्लाह का शुक्र ठीक है, है। चलिए बोलिए बोलिए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं अपनी बात कहूँ और निकल जाऊं। मैं आपसे ठीक बात है, करने के लिए बिल्कुल खामोशी में आता कि कोई आवाज पुकारा ना हो, ठीक है। समझे भाई। आपके आला हजरत की जन्म कुंडली निकालिए, उनका सिलसिला निकालिए। आपको कुतुब शाह मालूम है हैदराबाद में, यानी कुतुब शाह, आप गुजरात में रहते हैं, आपको तो इल्म होगा। कुतुब शाह यहाँ एक बादशाह आया था इराक से, है इल्म आपको? हाँ आपके बताइए गुजरात, बताइए, बोलते रहो पूरे बोलते हिंदुस्तान पे राज करा बंदा हो। मेरे हैदराबाद में तो काफी मस्जिदें बनाया वो भी राबजी था कुतुब शाही। तो इनके दादा, जो असल जो इनकी जो नस्ल है, नादर शाह, वो जो है ना कुतुब शाह के साथ आए थे, यही हिंदुस्तान में आए। पूरा खानदान जो है ना उनका राबजियत पे गुजरा। अहमद रजा ने भी तौबा की कि मैं राबजियत को छोड़ता हूँ और सुन्नत पे चलूंगा, बोल के तौबा करे। लेकिन अकीदा वही रखे, ठीक है। अकीदा वही। खबर बनाना है इस्लाम में। बात अल्लाह करते के नहीं रसूल की करते। हदीस सुनिए, इसके बाद आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। अल्लाह के चलिए रसूल की ठीक है, मैं हदीस है बात आखिरी, वो हदीस में लानत हो इंशाल्लाह फिर यहूदी और बात करते। नसारा पर जिन्होंने अपने अंबियाओं की खबरों को मस्जिद बना ली। आप ठीक है, जब भी चलिए वो जहाँ मसला भी देखेंगे, पहले मजार होगी, बाद में मस्जिद होगी। ठीक है। जहाँ चले भी अब मजार देखेंगे आप। इंशाल्लाह अब आगे आपको बोलने का अब मौका आप दूंगा। बोलिए, ठीक है, चलो ठीक आप बोलिए, अब बोलिए, मैंने है, बोल दिया है। ठीक है, मुझे बोलने थे। ठीक है, जी। ये सारी बातें आपने कही, ये बात एक भी बात आपकी नहीं उस वक्त तक मानी जाएगी हम्म, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला के ताल्लुक से कि मादल्ला वो रास्ते थे। मैं उनका हम्म, सजरा पढ़ के सुनाता हूँ। अब हम्म, आपकी जिम्मेदारी है कि उनका सजरा आप पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है ना? मैं जी उनका सजरा पढ़ के सुनाता हूँ, जी। जिनके सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला की तरफ से आपने कहा कि वो उजड़े थे मादल्ला, उनके 14 बेटे थे। वालेकुम उनके अस्सलाम। 14 बेटे अच्छा थे, ठीक है, ठीक बोलिए है ना? बोलिए बोलिए, आप 3 बोलिए। बेटियां थी, उनकी बीवी का भी नाम मैं सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, जी मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। फिलहाल मैं जी उनका शेरा पढ़ के सुना देता हूँ जी जी। और उसके बाद वो हिजरत मादल्ला, ये सारी चीजें आपकी दलील देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ आपकी भाई। बात उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी, एक भी बात, जब तक जी आप कोई दलील पेश ना करते। जैसे कि मैंने जी आपको दलील पेश की, जी आप कह बिल्कुल। रहे कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने वहाँ से इराक से हम्म, इधर चला है। अभी आपकी एक भी बात नहीं मानी जाएगी उस वक्त तक जब हम्म। तक आप कोई दलील पेश करते, किताब पेश करते। ठीक है, मैं दलील आपको इंशाल्लाह, किताब की एक बंदा है उसको मालूम है जी, किताब का नाम, मैं कोई भी आपको हो, देता हूँ कोई भी हो, इंशाल्लाह। आप तो मौलवी के चक्कर में चढ़ के जी पढ़ के गुमराह हो जी। गए, वो मसला अलग है। जब तक आप हवाला पेश करेंगे तब मैं आपकी बात इंशाल्लाह तब हम्म, मानूंगा मोतबर। जी अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका शजरा पढ़ के सुनाऊंगा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला का, और आप जी। बताइएगा कि उनमें से राबी कौन है। हम्म, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ। हम्म, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला का वालिद का नाम है सैयद गयासुद्दीन हुसैनी। हम्म, उनके वालिद का नाम सैयद सिराजुद्दीन हुसैनी। हम्म, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला। हम्म, उनके वालिद का नाम अब्दुल करीम। उनके वालिद हम्म, का नाम अब्दुल रहमान। उनके हम्म, वालिद का नाम अली अकबर। उनके वालिद का नाम इब्राहिम बिन मूसा, हम्म, इमाम इब्राहिम बिन मूसा। उनके वालिद का नाम इमाम हम्म, मूसा कासिम। हम्म, उनके वालिद का नाम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके वालिद का हम्म, नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम्म, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम्म, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम्म, उनके वालिद का नाम इमाम हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हम्म, हो गया वालिद की तरफ से सजरा, जी ठीक जी। है। वालिदा की तरफ से सजरा मैं बताता हूँ। हम्म, सैयदा बीबी उम्मे वरा, हम्म, उम्मुल वरा उनके वालिदा का नाम, ठीक है। हम्म, हम्म, उन, उनके वा, उनके वालिदा का नाम सैयद हम्म, दाऊद। उनके वालिद का नाम हम्बल। उनके वालिदा का नाम जाहिद। हम्म, उनके वालिदा का नाम उनके वालिदा का नाम सैयद वारिद। उनके वालिदा का नाम सैयद दाऊद। उनके वालिदा का नाम मूसा जिन। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन मोहित। हम्म, उनके हम्म, वालिद का नाम हज़रत इमाम हसन मन्नान। हम्म, उनके वालिद का नाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
یہ ہو گئے حضرت امام، وہ نجیب الطرفین ہے، ایک طرف سے تمام ان کا سجا ملتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک طرف سجا ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرف سے سجا ان کا سید کے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس میں سے بول لیتے مجھے، اب یہ دونوں طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف سے سجا گیا مولا علی تک، اور ایک طرف سے سجا گیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. یہ میں نے حوالہ پیش کر دیا ہوں، میں آپ کے حوالہ میں آپ کو پرسنل پر ڈال رہا ہوں. یہ 2 حوالے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ آپ مجھے وہ حوالہ پیش کریں جہاں پر حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آپ نے تہمت لگائی کہ حجرت ہے. پھر میں ان کے بیٹوں کا نام سن لیجیے، ابھی آپ کی باری، ابھی میں صرف 3 منٹ بولا ہوں، ابھی میں صرف 3 منٹ بولا، آپ 10 منٹ بولے تھے، آپ 10 منٹ بولے تھے، میں بھی تو انتظار کیا تھا نا. وہ حوالہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماشاء اللہ وہ ہجرت ہے، وہ حوالہ مجھے پیش کرے. میں انتظار کر رہا ہوں کتاب کا، اور پھر میں آپ کو ان کے بیٹوں کا نام، ان کے خلیفہ کا نام اور ان کے اہلیہ کا نام وہ بتانا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ذرا میرے واٹس ایپ بتائیں. پہ ڈال دیجیے، وہ بھی میرے واٹس ایپ پہ ڈال دیا میں نے ڈال دیا. میں آپ اپنے واٹس ایپ چیک کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ابھی فون چالو میں پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا. میں پڑھ لوں ٹھیک ہے، گا. میں ان کے بیٹوں کا بھی نام بتاؤں گا، میں ان کے پیر کا بھی نام بتاؤں گا، ان کے پیر کا نام بھی بتاؤں گا، ان کے پیر کا بھی نام بتاؤں گا، وہ سب کچھ بتاؤں گا. لیکن ذمہ داری سب حوالے کے ساتھ میں بتاؤں گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں. سب سے پہلے میں نے 2 حوالے دیے، میں تو بہت حوالے دوں گا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ذات کے متعلق بتا دیں. کسی پر چھیٹا کتی کرنے سے پہلے، بزرگان دین پر چھیٹی کتی کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ اپنے ذات کے تعلق سے صحیح سند پیش کر دیں. آپ نے کہا سب سے پہلے کہ وہی مزاروں پر جانے والے، جیسے کہ آج کے دور کے سنی حنفی بریلوی کا عمل زیادہ تر ایسا رہا ہے جو عوام میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بھی عوام میں سے تھے، تو آپ کو ایک قرآن کی آیت یا ایک صحیح حدیث پیش کر، آپ سے مطالبہ ہے میرا کہ آپ نے کہا نا کہ الحمدللہ میں رائے رب پہ آ گیا، توحید پر آ گیا، تو آپ کو ایک دلیل پیش کر دینی ہے، ایک حوالہ پیش کر دینا ہے، چاہے قرآن سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو. صحیح حدیث سے کبھی میرا مطالبہ نہیں، ایک ضعیف حدیث بھی ہو آپ کے پاس جس سے آپ یہ پیش کر سکیں کہ میں صحیح راہ راست پر آ گیا. عقل کے مطابق نہیں، کیونکہ عقل تو میں بھی بہت ساری بتاتا ہوں، عقلی دلیل تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں. میرا مطالبہ قرآن و حدیث سے جو دعویٰ ہے آپ کا کہ قرآن و حدیث پہ میں صحیح راستے پر آ گیا، تو دعوے کے مطابق آپ کو دلیل دینی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ذات کے متعلق بات کر لیں، اس کے بعد میں تمام بزرگان دین کے متعلق میں بات کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. آپ کی باری آتی ہے، اب آپ اپنے متعلق ایک حوالہ، آیت یا حدیث پڑھ کے سنائیں انشاءاللہ. میں سب سے پہلے قرآن کی اور میں بتاؤں گا، ہاں جی، میں بتاؤں گا کہ قرآن سے ہی بتاؤں گا اور حدیث سے بتاؤں گا کہ آپ گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیت سے میں بتاؤں گا اور الفاظ ٹو الفاظ بتاؤں گا. جی ٹھیک ہے، چلیے آپ بات کریں. نہیں، آپ کا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے. سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سنیے، اللہ تعالیٰ اچھا کیا مردے سنتے ہیں میرے بھائی؟ نہیں، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں نا. نہیں، میں نہیں جا رہا. میں آپ کو مین پوائنٹ پہ لا رہا ہوں جہاں پہ شرک کا معاملہ آ رہا ہے. وہ خاندان قبیلہ جیسا بھی ہو وہاں ہے، وہ جوابدار ہے، وہ مر گئے وہ جوابدار ہے. جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. میں قرآن کی ایک بات کہہ رہا ہوں، کیا مردے سنتے ہیں؟ ابھی آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. وہ شرک کے بات پھر کریں گے. اب اپنے ذات کے متعلق پہلے حوالہ پیش کر دیں، پھر میں الحمدللہ میں تو میرا شرک تو میرا من پسند موضوع ہے. میں تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو وہیں پر لانے والا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے ذات کے متعلق دلیل پیش کر دیں اور پھر میں دلیل پیش کر دوں. شرک پر میں تو آپ کو خود لے کر آؤں گا. زندے مردے سنتے نہیں سنتے وہ تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ضرور بات کریں گے. اسی پر میں آپ کو لانے والا ہوں. ابھی کیا بولنا ہے؟ ابھی آپ نے کہا نا الحمدللہ میں راہ راست پر آ گیا، تو راہ راستے پر آ گئے تو آپ کو ایک دلیل پیش کرنے کی آپ راہ راست پر آ گئے. آپ برابر ایک حوالہ پیش کریں. اللہ کے رسول کائنات کے امام نے سب سے آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ بولا تھا تم فی امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھڑ جاؤ، آتی اللہ آتی رسول. اللہ بھی وہی کہے، ٹھیک ہے. اللہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے.
ठीक है। अब अल्लाह और रसूल को छोड़ के हम किसी और के दरबार को जा रहे हैं तो वहाँ पे शिरक कर रहे हैं ना, ये वहाँ तो दावत शिरक कर रहे हैं। ये आपके मुतालिक ये आपके ये तो अच्छा मुतलकन जन्नत, कहा है अच्छा रसूल ठीक है पाक ने। ठीक है ठीक है ठीक है, जन्नत में ले जाने वाली चीज कौन सी है? ये आपके मुतालिक ये आपके मुताबिक दलील नहीं है, ये मुतलकन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के लिए कहा है, ये खास आपके लिए नहीं कहा है। ये आप अपने मुतालिक नहीं, दलील पेश हुदल करिए। लिन्नास तमाम इंसानों के लिए है पर अल्लाह ताला, ये खासकर आपके लिए मेरे लिए नहीं है ना कुरान, हाँ तो आपके लिए एक मेरे जगह लिए कुरान है। में हाँ नहीं तो सुनिए, एक जगह कुरान में ये भी तो है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत हाँ मुत्तकीन के लिए, उसका क्या करेंगे तो? सिरात मुस्तकीम, इधर सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे ना। अब आप दलील तो पेश करिए, ऐसी कुरान की आयत ना पड़े जिसमें दो तरह की आयत निकलती हो, ऐसी दलील पेश दो आयत करिए। का क्यों निकलेंगे, एक ही निकलेंगे ना। इधर सिरात अभी आपने मुस्तकीम, अल्लाह कहा ताला ये अभी सुनिए, आपने कहा आप था, सबसे सुन पहले लीजिए नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? इधर इधर सिरात मुस्तकीम है ना। सुन लीजिए, अभी आपने कहा अल्लाह हुदल हमको सीधा लिन्नास। रास्ता चला, सुनिए, अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। सीधा ठीक रास्ता है, कौन है? कुरान है और हदीस है, साहबा का ठीक है, तरीका है, ठीक है ठीक ना। है। आप तो साहबा का अब तरीका तो उसको मानते छोड़ नहीं। देंगे, उसको छोड़ने वाला क्या जन्नत में जा सकता? आप तो साहबा का तरीका मानते ही नहीं। हाँ अभी मैं आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आप तो साहबा का तरीका मानते ही नहीं आप। कौन बोले? साहबा का मैं बताऊंगा तरीका ना अगर नहीं आगे, माना तो मेरी मैं नजर में वो बताऊंगा ना, मुसलमान भी नहीं है, वो मैं बताऊंगा मुसलमान ना भी आगे, नहीं है। मैं बताऊंगा ना, हम्म, मैं बताऊंगा, मेरी हाँ जिम्मेदारी है बताइए, ना, बताइए बताइए आप, मैं बताऊंगा ना। अब मेरी बताइए। जिम्मेदारी है, पहले आप तो बात तो करें। आप हाँ बात करें अपने मुताबिक, पहले दलील पेश अरे करें कि आप मैं राय रास्त पे आ गए। सुन लीजिए एक मिनट, ये जब जो कुरान दावा और करते हैं हदीस, ना, सुनिए, सुन लीजिए एक अल्लाह मिनट, ताला क्या बोला, ला क्या नाम है तस्बीह आपका? साजिद बिहब्लिल्लाह साहब। जमिया बोल रहे हैं ना। अल्लाह ताला अल्लाह की रस्सी को मजबूत से, अल्लाह की रस्सी का लटक रही है आसमान से, कुरानी है ना, उसको पकड़े हुए रहेंगे और फरमाने रसूल को पकड़ेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। साहबा का तरीका है, उसको आप पकड़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे। हाँ तो अब पकड़े आप हैं बोल रहे तो हैं कि किस मैं उसके तरीके से? बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, तो वो बात नहीं होती ना ऐसी। जब आपको जन्नत की बात आ रही, हमारा तो ये आजमाइश है, यहाँ जो अच्छा करा बुरा करा उसका ले लेके जाने वाले हैं। हम इस शिर्क से डरते हैं, बिदा से डरते हैं। अगर गुनाह, इंसान ठीक है, बशर है, गुनाहों का पुतला है, गुनाह होते हैं इंसान से, ठीक उसको है। गफूर अब रहीम मुझे माफ कर देता हूँ बोला, जमीन और चलो आसमान से ठीक लिख के रख दो माफ कर देता हूँ बोला। जर्रा बराबर भी अगर देखिए, शिर्क है तो उसके लिए 100 हज 1000 उम्र भी जो है ना बेकार है। बोलिए। चलिए आपने इतनी सारी बातें की, लेकिन अपने मुतालिक एक भी दलील नहीं पेश किया, सिर्फ कुरान और कौन हदीस सी के नाम पे। दलील, कुरान और कौन सी सुन दलील? लीजिए मैं एक मिनट, आपको दलील दे ही दिया, मैं आपको बता दलील रहा हूँ, सुन दिया। लीजिए, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। ये जो आप दावा कर रहे हैं ना कुरान और हदीस पे चलने का, ऐसा हाँ कोई भी मुसलमान अपने आप को कहलाने वाला इंसान नहीं है, हम्म, हत्ता के शिया हो या कादियानी हो, कोई भी हो, हम्म, कोई भी हो, बद मजहब कोई भी हो, हम्म। कोई भी अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कुरान और हदीस पे नहीं चलता हूँ। वो सारे ही कहेंगे, चलो लेकिन मैं असल में आपको हम चलते हैं नहीं। सुन कुरान से लीजिए, दो असल दलील में देता हूँ। एक सुन सूर्य लीजिए, मरियम की, सुनिए, एक सूर्य मरियम की, एक सूर्य सूर्य यूनुस या सूर्य, दो जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है, ईमान लाने के बाद काफिर हुए बोल रहे हैं, फिर ईमान ठीक लाने है, के बाद मुशरिक हो गए, फिर ईमान लाने के बाद ठीक है, मुशरिक का साथ आदमी, ये बोलिए मेरे को ठीक आप। है, वो उसका भी जवाब मैं दूंगा ना, उसका भी जवाब मेरे नहीं पास आप दो, मैं पहले दूंगा पहले जरूर। मेरे सवाल का जवाब दो आप। ईमान लाने हाँ, के बाद मुशरिक कौन हुआ, ये बोलिए आप। ठीक है। अभी तो आज वो आज मुशरिक पढ़ी नहीं किसको है, अब बोलते हैं? मैं मुशरिक बता रहा किसको हूँ, बोलते हैं? उसी का जवाब दे दूँ, उसका हम्म, जवाब दे दूँ पहले। हम्म, अब मुझे आप टाइम दीजिए। वो जो हम्म, आपने आयत पेश की है, वो सूरह यूनुस आयत नंबर 106 की आयत पेश की है। वो हाँ आयत ऐसा है। मुनाफिकीन के लिए आपके जुबैर अल दही की किताब में आपको हवाला पेश कर देता हूँ। अरे बड़े आपके भाई, जुबैर बड़े अल भाई, दही बड़े में भाई, अल्लाह ताला सुन वहाँ लीजिए। मुशरिक का वर्ड लिया, अल्लाह ताला मुशरिक का वर्ड लिया, एक जगह हाँ तो काफिर का मुनाफिक है लिया, ना, एक ये जगह आयत मुनाफिकों के लिए। सुन लीजिए, ये मुनाफिक अस्तगफिरुल्लाह। जो थे ये शिर्क करते थे। ये वो हवाला देखिए, आपको परसर में मैं डाल देता हूँ। आपके जुबैर अली दही ने खुद कहा है कि ये आयत मुनाफिकीन के लिए है, वो जो शिर्क करते थे, पीठ पीछे शिर्क करते थे और सामने आके कलमे पढ़ते थे, ये मुनाफिकीन के लिए है। ये देखिए मैं आपको परसर अल्लाह में वो ताला हवाला मुशरिक डाल। बोला है। देखो मेरे को जुबैर अली की मिसाल नहीं होना है, मेरी बात सुन लो, फिर एक बात बोल रहा हूँ। जुबैर अली जुबैर दही अली देखिए जही आप, रहीमुल्लाह की नहीं होना है, सुनो, जुबैर अली जही रहीमुल्लाह की नहीं बता रहा देखिए मैं मैं आपको कुरान की हवाला भेज आयत, दिया हूँ। वो तफसीर में मेरे को नहीं जाना है, तफसीर में मेरे को नहीं जाना है, माने बोलो भाई खाली। आप अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं माने कि ही मैं ईमान बोल रहा लाने के हूँ। बाद देखिए मुशरिक हो एक गए। मिनट सुनिए, वहाँ बात मुनाफिक लिखा हुआ है, सुनिए, मुशरिक लिखा हुआ है। बात सुनिए। सुनिए वो एक मैं सेकंड जान रहा अभी, हूँ, मैं आज पढ़ के बता दूँ। सूरह यूनुस तो 6 अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हाँ हूँ, आप एक निकालिए, मिनट। आप निकालिए, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। चलो कुरान निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास है, मैं भेज दूँ।
इसमें ज़रा लंबा टाइम लगता है। चलिए मैं भेज दे रहा हूँ ना, या आइए व्हाट्सएप पर आइए, मैं भेज दे रहा हूँ। हेलो, देखिए मैंने भेज दिया आपको। हेलो, देखिए मैंने भेज मैं दिया। बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, जरा रुकिए। हाँ, घबराने की बात सूरह नहीं, मैंने यूनुस खुद की भेज आयत दिया अभी है। निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, जरा रुकिए। मैंने भेज दिया है आपको, मैंने भेज दिया है। पढ़ के दिखाऊं मैं आपको? मेरे को आप आपके ये जुबैर अली बोलिए, से। ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला मुशरिक किसको बोले? बिल्कुल ठीक है, मुशरिक मैं होना बता, है। ठीक है मैं बताऊं, मैं बताऊं। हेलो, आपके जुबैर अली से की किताब मैंने भेजी है। ये देख ले, लिखा है कि ये आयत ऐसे मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है जो अल्लाह ताला के खलीफत के इकरार करते थे और गैरों के इबादत में शरीक करते थे। वमा युमिनून अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। आयत मैंने पेश कर दिया आपका पर असल हवाले में, सूरह यूनुस आयत नंबर 106। तो 1 2 3 4 5 व्हाट्सएप पर आ 6। जाइए, व्हाट्सएप पर आइए, मैंने आपको भेज दिया। खुद से कुरान समझने वाले की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने अकल के मुताबिक कुरान की आयत समझता है। नहीं, ये सूरह 6 की नहीं होती मेरे भाई, ये सूरह यूनुस में नहीं है, सूरह कोई और 6 आयत है। नहीं जनाब, सूरह नंबर 106 है। 6 नहीं, सूरह नंबर 106 है। नहीं, सूरह नंबर 106 में वो वर्ड नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये आयत पढ़ लीजिए आप, जो अभी आपने बताया ना। कौन सी सूरह? 106। सूरह यूनुस आयत नंबर 106 मैंने आपको व्हाट्सएप पर हवाला भेज दिया है, एक मिनट, आप चेक कर लीजिए। अब आपके ज़ात के मुतालिक में हवाला एक पेश सेकंड, करने एक लगा सेकंड। हूँ। सूरह नंबर 106, आयत नंबर क्या है? आयत नंबर 106, हाँ, सूरह यूनुस आयत नंबर 106। अरे यार, मैं 106 ही निकाला यार, वो आयत नहीं होती। कौन सी आयत आप बता रहे हैं? मैं जो बता रहा था आप, वो अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं, एक जगह जो है ना सूरह मरियम में है शायद, अल्लाह ताला ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। सूरह यूनुस या उससे पहले के सूरह में ये है, 106 की आयत है कि ईमान लाने के बाद मुशरिक हुए। अब मैं बताता हूँ, वो जो सूरह मरियम का आप बता रहे हैं ना कि ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, वहाँ पे अल्फाज ये है कि सूरह ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, वो मुनाफिकीन के लिए था। वो इसलिए था क्योंकि वो सुनिए, अपने, वो सुन बात लीजिए मैं पूरी बात मुनाफिकीन का करता हूँ ना। मामला अलग आता मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मुनाफिक किसको कहते वो हैं ये अपने बोलिएगा। मुनाफिक वो सुनिए सुनिए होता सुनिए है सुनिए, जिसके, मुनाफिक। मुनाफिक की किसमें बता रहा हूँ ना, मुनाफिक के बारे में आपने पूछा, मुनाफिक के किसमें बता रहा हूँ। मुनाफिक वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक के अलावा 4 निशानियां बताई हैं। मुनाफिक वो होता है कि एक तो जब बात करता है तो झगड़ा करता है, उसके जिसके दिल में कीना होता है ना, बुराई, हसद, वो मुनाफिक होता है। बात करते समय झूठ बोलेगा, अमानत में खयानत करेगा, हाँ, अब बात करते वक्त लड़ाई करेगा। ये मुनाफिक की अलामतों में से अलामत है। बुखारी शरीफ के शुरू में ही हदीस मिल जाएगी हमको, ठीक है ना, बुखारी मुस्लिम सियाह से तब मिल जाएगी। मिल जिसके जाती। दिल में कीना होता है, ठीक है ना, वो मुनाफिक होता है, ठीक है ना। वो हवाला मैंने बात दिया। अब मैं आपके दास के मुताबिक हवाला मैं पेश करने मैं लगा हूँ, वो आपको सुन नहीं, लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई, मैं जो बोला मुनाफिक की पहचान नहीं बताया मैं। मुनाफिक कहाँ से होता है बोला? मुनाफिक जिसके दिल में कीना होता है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मुनाफिक जो है ना 2 चीजों में से निकलता है मुनाफिक, एक काफिर में से, एक मुश्रिक में से। एक बार ठीक है, ध्यान में रखो मेरी, एक काफिर में से निकलता, एक मुश्रिक में से निकलता, समझिए, 2 जगह से निकलता। लेकिन वो जो आयत है वो मुश्रिकों के लिए है, मुनाफिकों के लिए अल्लाह ताला अलग है वो आयत है। मुनाफिकों की पहचान अल्लाह ताला बताए, अल्लाह के रसूल भी बताए, समझे। अब्दुल्ला बिन उबई को अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दौर में अब्दुल्ला बिन उबई से भी बढ़ के है मुनाफिक, समझ रहे। लेकिन हम कायनात के इमाम ने हमको ये कहा कि ये मुनाफिकों का सरदार है, हम उसको वही मानते हैं, उसको ही मानते, उसको अब्दुल्ला बिन उबई को सुबह क़यामत तक भी हम उसको जो ना मुनाफिकों का सरदार ही मानेंगे, समझ रहे। ठीक है। अब चलिए आप अपने दांत के मुतालिक, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप अपने दांत के मुतालिक, मैंने अभी आपके, मैंने दांत के मुतालिक सुनिए, मैंने, मुशरिक कहाँ से हुआ ये खबर की, और एक बात बता रहा हूँ, ये खबर पे जाके नेक समझ के वसीला लगाना, सिफारिश करना, या फिर उन ठीक पे है, ठीक है, सजदा उस पर करना, आते ये हैं, उस पर कहाँ से आते है? हैं, ये कहाँ से उस शुरू है? पे नहीं, आते हैं, उस मैं पे ये पूछ उस पे रहा हूँ, आते हैं। ये चीज कहाँ से है?
मेरे भाई। उसे ही मैं जो पढ़ाते भी हैं पूछ रहा हूँ इंशाल्लाह। मेन पैटर्न पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा जी हूँ जी पूरी तरतील से जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेन चीज पूछ रहा हूँ, ये चीज कब से है, कहाँ से है, ठीक है ठीक है कौन से ठीक है, मैं जमाने उसी से है? पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं उसी पढ़ाता हूँ, उसी हाँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, उसी क्या पढ़ाता बोले? हूँ मैं, ठीक है। आप हाँ मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं? हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दो आप, जी कि ये बिल्कुल दूंगा ना, खबरों की बिल्कुल पूजा दूंगा करना, दूंगा, उनकी इबादत बिल्कुल करना, दूंगा। उन पे जो है ना जाके चादर चढ़ाना वगैरह जो भी करते, ये हाँ कब से ठीक है है पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आप। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। ठीक है, अब मुझे 5 मिनट बात करने देंगे, हाँ बिल्कुल। उसी पर बात करूंगा, ठीक है ना। जी सबसे जी। पहले मैं आपके बात के मुतालिक हवाला पेश कर देता हूँ, फिर मैं आपके हम्म सवाल का जवाब जो आपने कहा है ना कि हम्म कपड़ों की पूजा करते हैं मादल्ला, फिर उस पर आते हम्म हैं इंशाल्लाह, जरूर एक ही टर्न में जी आते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका जात के मुतालिक हवाला में पेश करने लगा हूँ, कुरान है सूरह बकरा आयत नंबर 8 और 9 है। जी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमन ना से मैया कुल आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बाद लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन वह हकीकत में ईमान रखने वाले नहीं। हम्म युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, क्या कहते हम्म हैं? बाद हम्म लोग कहते हैं कि और अल्लाह और हम क़यामत के दिन पर हम्म ईमान रखने वाले, हम्म लेकिन वो हकीकत में ईमान वाले नहीं है। दावा हम्म, करते हैं, हाँ। और दावा किस बिना पर करते हैं कि हम कुरान और हदीस पर चलते हैं, इसी अच्छा। बिना पर कहते हैं। हम्म। दावा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तो हाँ अपने घर की किताब हाँ तो कोई नए ऐसे हाँ, नहीं बता बिल्कुल रहा हूँ कि मैं अपने सही बात है ये बात। ठीक है। ये बात वो कहाँ थी, मैं अब ये नहीं आगे आ बोलता हूँ जाइए, लेकिन अब वो हाँ, कौन ठीक लोग ठीक। दावा करने वाले हैं, वो हम्म कौन लोग दावा करने वाले हैं, उनकी असल जान लेते हैं। आयत हम्म नंबर 16 और 17 देख लीजिए उधर सूरह हम्म बकरा में। हम्म उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा हाँ, कानू मुहतदीन। ये वो हम्म, लोग हैं जिन्होंने, वो तर्जुमा बता रहा हूँ, तिजारत। ये वो लोग हम्म हैं जिन्होंने हम्म गुमराही को हिदायत के बदले खरीद लिया। गुमराही हम्म को खरीद लिया हिदायत के बदले, पहले खुद ये हम्म, हिदायत याब थे, फिर बाद में उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। क्या है तर्जुमा, मैं हाँ पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। ये वो जी। लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले खरीद लिया, बस ना गुमराही। तो उनकी तिजारत ने हम्म उनको फायदा पहुंचाया और ना तो ये खुद हिदायत याब हुए, ठीक है। उसके हाँ। आगे हम्म वो गुमराह हुए हम्म और ना तो खुद हिदायत वाले हुए, हम्म, और ये इन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले कर लिया, पहले हिदायत पे थे, खरीद लिया। बाद में गुमराही को उन्होंने खरीद लिया, गुमराही। ठीक है ना। जी जी ठीक है, दो हवाला मैंने पेश कर दिया। अब आते जी। हैं आपके बात पर कि आपने कहा कि कब्रों की पूजा क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो जी। सबसे पहले तो ये सरासर सबसे पहला ही आपका सवाल ये है, इल्जाम। हम्म, सबसे पहला ये आपका सवाल ही इल्जाम है। जी सबसे जी। पहले आपको सवाल को मुकम्मल करने के लिए आपको अपने दावे पर दलील देना होगा कि कब्रों की पूजा करता कौन है, कब्रों की पूजा करता कौन है, और कब्रों की पूजा करने के मुतालिक हुक्म क्या है, और कब्रों की पूजा कर कौन रहा है। जी इल्जाम नहीं, दलील। जी। दलील कब्रों की दलील पूजा मैं कैसे की आपके जाती है? ठीक अजहरी है साहब से देता, मैं दलील अजहरी साहब को देता हूँ दलील, अर्जुन में जाके उन्होंने जाके क्या 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 करे, दुआ कैसी करे वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक वो है, तो ऑनलाइन बताइए। है टीवी पे, ठीक है। ठीक है, बताइए। चलिए अब वो मेरे किताब पढ़ के सवाल का। बताइए मुझे। जी। किताब पहले अभी से कौन सी किताब? बताइए, पहले पहले सबसे पहले पूजा पर ही चलते हैं। पूजा तो कहते मैं ये किसे हैं? खबर कब से है, मैं ये पूछा मेरे प्यारे भाई, अभी आप खबर पे दूसरी तरफ जाके जा रहे हैं, वसीला लगा, वो कब सुनिए। से मैं बताऊंगा ना, वसीला। वो खबर तो हाँ बहुत साल से वो है। मेरे को पहले वो बताइए, आप वो बताइए तो मैं उसके आगे बात करूंगा, अच्छा, अब आप खबर कब बताइए से भाई। वो मैं बताऊँ आपको? हाँ। खबर कब से वो मैं बताऊँ? ठीक है, हम्म। मैं बताऊँ? जी ठीक है, देखिए बताइए मैं, भाई आप। हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं, व्हाट्सएप आपका चालू है? हाँ व्हाट्सएप चालू है मेरा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे जरा आ जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे पहले मैं नहीं भेज दूँ। नहीं नहीं, मैं आप हजरत, मेरे व्हाट्सएप पे हाँ भेज हाँ, दिए आप, लेकिन ठीक है आपसे ठीक है मुंह से ठीक है, तो बोलिए ना, आप हाँ ठीक कब है, से पहले खबर? भेज लो, पहले भेज हम्म, लो, पहले मैं अच्छा भेज लूँ, अच्छा। इंशाल्लाह उसके भेज आगे दीजिए। बताने में मजा आता है, ठीक है ना। ठीक ठीक है, भेज दीजिए। सही है ना, ठीक है भाई। उसके आगे बता देंगे तो फिर इंशाल्लाह मजा आएगा। देखिए ठीक पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप व्हाट्सएप ठीक। पे चेक कर ले, मैंने अभी कुछ ही भेजा है जी नमूने के तौर पर, ज्यादा नहीं भेजा मैंने। ठीक अब मैं बता रहा हूँ ये कब से है, जब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला पैदा भी नहीं हुए थे। हम्म ये उनके, समझ लो उनसे 1000 साल पहले की कब्रों के, और हजार नहीं कई हजार साल पहले की मैं कब्रों के हम्म मज़ारात में भेज रहा हूँ। सबसे हम्म पहले ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला का हम्म, मज़ार भेज रहा हूँ, जो 256 हिजरी में वफात पाए, ठीक है। अच्छा। दूसरे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा शरीफ, अच्छा। हजरत इनका है,
एक मिनट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ। हजरत शेख मारूफ करके रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका विसाल 133 हिजरी है, 133। अच्छा फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कब्र मुबारक में भेज रहा हूँ, मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है। जी और जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कब्र मुबारक मैंने भेजा है, ये सब आला हजरत ने बनवाया। और मैंने हजरत इमामुल मुरसलीन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैंने भेजा। और मैंने 18 में हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अल मुतफ्फा 633 हिजरी, ये 800 साल पहले के बुजुर्ग। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो तकरीबन 3800 साल पहले के गुजरे हैं, 3800 साल पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, 3800 साल पहले। मेरे प्यारे भाई एक बात रुकिए, 3800 साल पहले नहीं है, मूसा अलैहि सलाम को आके 3000 चिल्लर साल हो गए। मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कब्र मुबारक बता रहा हूँ, उनसे भी पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले गुजरे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तकरीबन 300-400 साल पहले। नहीं, इससे हजरत आगे यूसुफ क्या है, अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम से कई नबी आए इसके बीच में, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। न जाने आपने कहा ठीक है पढ़ा, ठीक मुझे है तो पता नहीं। जी जी हाँ ठीक हजरत याकूब, चलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपने कहा पढ़ा, मुझे तो इल्म नहीं था, क्या पढ़ते हैं आप लोग। चलिए मैं बहरहाल पढ़ता हूँ अब मैंने भेज दिया। आप ठीक है। आप बताइए, अब ये कब्र का मैंने फोटो भेजा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो तकरीबन तो ये खबरों पे 3500 साल जाके पहले। क्या करना है, खबरों पे जाके ये उनकी हिदायत इस की पर आप दुआ करना मुत्तफिक है हो या गए, इस उनकी पर बख्शिश के मुत्तफिक लिए हो दुआ गए आप। करना है या एक उनसे मदद मांगना है? हाँ, आप मदद पर बात करते हैं, ठीक है, हम्म आप मदद पर बात करते हैं, नहीं नहीं, मदद के मुतालिक। एक मिनट, आप कब से बता रहे हैं देख खबर की लीजिए आप, इबादत देख लीजिए, मैंने सिफारिश आपको के लिए? व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है, नहीं मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं जो अल्लाह ताला ने लेके कुरान जाइए। में बताए हैं सूरे नूह में। नूह अलैहिस्सलाम से पहले कौन है? इदरीस अलैहिस्सलाम है। नूह अलैहिस्सलाम से पहले इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद 5 खबरें थी, कितनी? लाज, उज्जा, यगूस, ये 5 खबरें हैं जो वो नेक लोग समझ के उनकी इबादत करते थे। कब्रें उनकी थी, इबादत ये कहाँ पे पढ़ा आपने कब्रें थी, ये कहाँ पे आप पढ़ा पढ़िए, आपने कब्रें या थी? नहीं सुनिए, ये आप सूरह यूनुस निकालिए, आप पढ़िए, वहां पे कितने लाज नंबर लिखा हुआ है? नाम है 5 खबरों के नाम है, खबर है वहां पे 5 खबरें थी कबूर के जिसको नहीं, ये वहाँ पे लोग मूर्तियाँ बनाए सिफारिश हुए लोग। समझते थे, नेक आदमी समझते थे, उनकी सिफारिश यानी अल्लाह के सामने सिफारिश के लिए नेक है समझ के उनकी सिफारिश के लिए वो लोग उनकी इबादत करना शुरू कर दिए थे। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा वहां। आप सुने, पढ़िए, मैं आप बताऊं, पढ़िए, वहां से खबर की पूजा स्टार्ट है, वहां से, उससे आप पहले सुनिए, नहीं मैं मालूम है, बताऊं, उससे पहले नहीं मैं मालूम है। मैं बताऊं, हम्म, वहाँ पहली बात तो कब्रें है नहीं, कबूर का मतलब जरूरी नहीं कि कब्रें ही हो, कब्र का मतलब हर जगह नहीं, कब्र का मतलब कि बड़े भाई कब्रें मेरे लेते को, हैं। मैं इतना मैं जाहिल भी बताऊंगा नहीं ना, हूँ। सुनिए मैं इतना मैं जाहिल भी बताता हूँ नहीं ना। हूँ। आप अपनी मतलब के लिए कुरान को चेंज कर देंगे, ना आप ना अपनी ना ना मतलब की ना, लिए आयत ले आप रहे हैं। ऐसा ना कहिए, आप सुनिए अल्लाह सुनिए ताला सुनिए। वही बोल रहे हैं, ये लोग कुरान जो है ना अपने हिसाब की लेते, वो तो अब आपको देख के वो आयत याद आ रही मेरे को, समझ रहे हैं? वहाँ कबूर का वर्ड आया, ये 5 लोगों की खबरें थी वर अल्लाह ताला। आप अरे पढ़िए, भाई सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, सुन मेरे लीजिए। से एक काम करिए, फिर एक दफा चलिए आप आप सुने, बात करें, आप बात कर सुनिए, लीजिए, चलिए आप बात करें, फिर मुझे बोलने देंगे ना? हाँ बराबर बोलने दूंगा मैं। आप एक काम ठीक है, करिए, आप सुनिए, बोलिए। फिर अपन आप मैं अभी रात में मैं आपको 3 बजे तक का वक्फा देता हूँ आपसे मेरे से बात करने के लिए। ठीक है, मैं आपको एक दफा सूरह नूह पढ़ लीजिए, वहां पे जो नाम आ रहे हैं 5 के, वो 5 खबरें हैं या बुत है, ये देख लीजिए आप। ना अल्लाह ताला बुत ने बताया, खबर बताए। फिर अल्लाह ताला कुरान में एक जगह ये भी फरमा रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनके आंख है वो रही देख नहीं सकते, जिनके हाथ है हिला नहीं सकते, जिनके पैर है चल नहीं सकते, जिनके कान है सुन भी नहीं सकते, उनको ये भी नहीं मालूम दोबारा कब उठाया जाएगा। पुतले को उठाया जाता, इंसान को उठाया जाता, ये खबर के अंदर की बात हो रही ना मेरे चलिए प्यारे मैं भाई। बात करूँ। अल्लाह ताला कुरान में ऐसी ऐसी मिसालें दी हैं, अल्लाह को छोड़ के तुम जिसकी इबादत या सिफारिश जो भी करते हैं, खजूर की गुठली अपन खा के थूक देते ना, तो वो सूख जाती ना, तो उसके ऊपर एक छिलका आता, तो उसका भी इख्तियार नहीं रखते बने। फिर अल्लाह ताला, फिर अगर ये बात अगर मैं बोलूं
जो 17वें पारे की आयत आ अरे रही, भाई आप तो देखिए उसमें गलत सुनिए जगह जा रहे सुनिए हैं, आप बोलने देंगे नहीं, मुझे? देख दो बात करके खत्म करता हूँ मैं, उसके बाद आप बोलिए। चलो अल्लाह ताला ये भी बोल रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हैं वो सब पूरे जितने भी, यहाँ से अब आप मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से शुरू होती अब्दुल ठीक है। खादर गिलानी रहीमुल्लाह से लेके ताजुल शरिया तक, अहमद अब्दुल खादर गिलानी रहीमुल्लाह से लेके ताजुल शरिया तक, सबके लिए अल्लाह ताला कुरान एक ही वक्त में रखे, वो सारी चीजें बता देता हूँ मैं। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला पूरे मिलके एक मक्खी नहीं बना सकते, काबे की रब की कसम कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए मैं मक्खी तो बताता दूर हूँ की आपको बात है, उसके। मक्खी तो दूर की बात है, फिर अल्लाह ताला भाई मिसाल भी देता, बहुत प्यारी देता अल्लाह ताला। मक्खी अगर इनके पास से कुछ उड़ा ले जाए, मतलब एक मिठाई पे बैठ के अगर लेके गई तो हम देख तो नहीं सकते उसको, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता वो ठीक कितना है, लेके जा चलिए रही है, तो ठीक है, अब मैं उसको भी बताऊँ। छुड़ा नहीं सकते। ऐसा ऐसा भी थर्ड क्लास बता रहे हैं, वैसा भी थर्ड क्लास, पूछने वाला भी लच्चर बोल रहे हैं, मांगने वाला भी लच्चर बता रहे हैं अल्लाह ताला। चलिए अब दोनों चीज मैं बता दूं, चलिए अब बात आ दीजिए, अब आप बोलिए, आपकी अब बात मुझे सुनता हूँ बोलने देंगे? मैं। ना, चलिए अब ठीक आप है, आपने बोलिए, मैं बता। खाम सुनूंगा मैं। ठीक है, अब आपने 3-4 बातें की। सबसे जी पहले मैं आपको वो कुबूर का मतलब का आप बता रहे, कुबूर का मतलब कब्र ही होता है। वहाँ पे आपने कहा लफ्ज़ कुबूर है तो मतलब उसका माना कब्र ही लिया जाएगा। तो मैंने कहा कि हर जगह कुबूर का मतलब कब्र लिया नहीं जाएगा, ठीक है ना, हर जगह नहीं लिया जाएगा। उसके दलील में मैं एक हवाला में पेश करने लगा, कुरान से सूरह फातिर आयत नंबर 22 है, हाँ आयत नंबर 22 22 है। जी हाँ जी जी 22, वमा यस्तवी हम्म अल हम अहया ऐसे ही वल मौत। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं, बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है नहीं सुना वनीस देता से, है। नहीं मेरे भाई वनीस से पढ़िए, आप वनीस से पढ़िए, वनीस से बेहतरीन मिसाल है वो, वनीस से ठीक स्टार्ट है, करिए, 19 से 22 से पढ़िए। रुकिए। ठीक है, 19 से पढ़ दूँ? हाँ पढ़िए। ठीक है, 19 से पढ़ रहा हूँ। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, ठीक है ना, माशाल्लाह जी और ना तारे की और रोशनी बराबर नहीं, और ना जी ही छाँव और धूप बराबर नहीं, ठीक है जी ना, जी और ना जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। जी अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और हाँ आप उन लोगों को हरगिज नहीं सुना सकते जो कब्रों में है, ठीक है ना। हाँ अब जी यहाँ पे लफ्ज़ कब्रों में है मौजूद है, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों में कब्रों के पास सुनाए जाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप उनको हरगिज नहीं सुना सकते जो कब्र में? नहीं, हाँ वहाँ पे अल्लाह ताला ने मिसाल फरमाया कि वो कब्रों में मतलब वो अंधे बहरे, जैसे कि कुरान में है ना, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, ये आप किधर की जा गूंगे रहे हैं, हैं बता, बहरे हैं, अगले नहीं मैं नहीं हाँ, किधर की जा रहे मैं हैं बता आप रहा हूँ, किधर की आप जा मुझे रहे बोलने दें, मैं बता रहा बोलिए हूँ, आप बोलिए, मैं मुकम्मल बात बीच में करने नहीं बोल रहा दें। हूँ, मैं आपको बीच हाँ में नहीं ठीक बोल है, रहा हूँ मैं आपको। क्यों क्यों क्यों? हम्म देखिए मैं आगे की भी आयत पढ़ के बता रहा हूँ। आपने हम्म 19 से शुरू किया है, मैं 22 बता रहा था, अब 23 भी बताऊंगा। पहले मैं हम्म 22 मुकम्मल करता हूँ। लिखा है जिंदे और हम्म मुर्दे बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह हम्म ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उन लोगों को हरगिज़ नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। हम्म हालांकि वो कब्रों में नहीं, वो काफिरों के ताल्लुक से था। क्यों? हम्म आगे सुनिए, हम्म इन्ना अंता इल्ला नज़ीरुन, आप उनको सिर्फ डराने वाले हैं। आप हम्म आप उनको हरगिज नहीं सुना सकते कब्र में। क्यों? वो कौन है? आप सिर्फ उनको डराने वाले हैं। हम्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हक की खबर किससे? पहुंचाने वाले थे। आप मुर्दों को डराने अल्लाह के वाले रसूल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को नहीं, वही तो मैं हम्म कह रहा हूँ, कुबूर का हम्म मतलब हर जगह मुर्दों नहीं होता है, वो काफिरों को ताल्लुक से आए थे। आप नहीं समझ रहे, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि हर जगह कुबूर का मतलब मुर्दे नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया है कि आप उनको हरगिज नहीं सुना सकते जो कुबूर में है। वो जरूरी नहीं कि वो कुबूर का मतलब कब्र में है, वो मुर्दे हैं। जैसे कि सूरह बकरा में शुरू में ही है, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, ये हम्म गूंगे हैं, बहरे हम्म हैं, अंधे हम्म हैं। हालांकि वो गूंगे नहीं है, अब हम्म बहरे भी नहीं, अंधे हम्म अंधे भी नहीं। अल्लाह ताला ने फिर भी फरमाया कि ये गूंगे अंधे बहरे हैं। इसी हम्म तरह का काफिरों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल मुर्दा है, वो हम्म, मुर्दा नहीं, उनके दिल मुर्दा है। क्यों? हाँ सिर्फ उनको डराने वाले हैं, वो नहीं हाँ डरेंगे जब तक अल्लाह हम्म रब्बुल इज्जत को पहचानेंगे नहीं, तब तक उनके दिल में कोई रौब आएगा नहीं, वो डरेंगे नहीं नहीं। ये है नहीं काफिरों के ताल्लुक से, मैं कुबूर के ताल्लुक से। अब अच्छा आपने दूसरी बात की थी कि ये आपने सूरे कौन सी आयत बताई? सूरे हज की आयत नंबर 73, हाँ है ना? हाँ हाँ 23 सूरे हज के, हाँ अब मैं वो बता देता हूँ, सूरे हज की आयत नंबर 73 का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि एक मक्खी भी नहीं बना सकते, जरूर नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है तो हर कोई बना सकता है। जैसे कि आप सूरे, ये तीसरा पारा पढ़ लीजिए, सूरे मरियम, सूर्य मरियम सूर्य, हाँ हाँ सूर्य मरियम आप पढ़ लीजिए,
وہاں پہ آیت نمبر 39 میں انی اخلق لکم، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی یعنی میں، اخلق لکم میں مردے بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو زندہ ہوتا ہے، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ حالانکہ بنا کون رہا ہے؟ آپ نے کہا کوئی بنا نہیں سکتا ہے، آپ نے کہا کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق معجزہ لکم، نبیوں کا معجزہ جو ہے نا، آپ تم اپنے ولیوں پہ لگائیں گے تو کیسا بھائی؟ آپ سن کہاں لیجیے خیال میری میں بات جا سن نہیں لیجیے، نہیں نہیں سن نہیں، لیجیے، دیکھو آپ کی میری جو بات قرآن کی ہو آیت رہی ہے وہ غلط ہے، سر پہ ہو رہی ہے۔ آپ قرآن کی نبیوں آیت کی غلط ہے، بات میں سنیے، بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے چاند کے پوری بات تو کر رہے دو تھے نا۔ ٹکڑے کر دیے، تو آپ ولی بھی کرے بول کے بتا دیں گے؟ نہ عبد نہ القادر نہ نہ گیلانی نہ سنو، نہ نہ عبد نہ القادر سنیے میری گیلانی بات، رحم اللہ جو نا ایک ساتھ مار ڈالتے تھے، ایک ساتھ اٹھا دیتے تھے، آپ غلط دھوبی کو جگہ بھی جا رہے جنت میں لے کے گئے، ہیں۔ دھوبی کو دیکھیے بھی آپ جنت میں لے کے گئے، تو مانیں گے اس ابھی کو؟ آپ مان سکتے ہیں؟ ابھی آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں نا، مجھے بولنے کا آپ نے کہا تھا نا میں بولنے دوں گا، ہاں تو آپ نہیں، کا آپ فرض بول رہے ہیں، آپ بنتا ہے میں سے میری بات پوچھے تو سننے۔ جواب دے رہا ہوں میں، میں آپ نے آپ کی پوچھیں میرے ساری سے تو باتیں، میں آپ نے جواب دے رہا جتنی باتیں کریں، آپ نے ساری باتیں کی تھی، تو میں نے آپ کو کوئی بیچ میں خل سے مباحث کی تھی؟ آپ ہوں۔ بتائیے۔ نہیں کرے بھائی، نہیں نہیں، آپ نہیں نہیں کیا کرے، تھا نا، لیکن آپ میری آپ بات نے سنیے نا۔ پوچھا، آپ نے بولا تو میں بولا، چلے کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے میں مجھ بتا سے رہا ہوں۔ مخاطب ہوئے تو بولا حضرت میں۔ عیسیٰ چلے ٹھیک ہے، آپ نے مخاطب ہوتا، میں بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق لکم، آپ نے کہا تھا کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم بھی کہتے ہاں، ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر دیے ہوئے سے کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لے نے دیکھا، سکتا نہیں۔ آپ کہہ رہے قرآن میں، آپ نے کہا تھا قرآن، آپ نے کہا تھا کہ وہ معجزہ ہے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں معجزہ ہے، لیکن کس معجزہ، کوئی نبی جو ہوتا ہے کوئی معجزہ اپنے پاس سے تو نہیں دکھاتا ہے نا، اللہ کے حکم سے تو معجزہ دکھاتا ہے نا، وہ ہاں بھی پھر اللہ کا حکم ہی ہے۔ انی اخلق لکم، میں مردے زندہ کرتا ہوں، اس کے آگے کیا ہے؟ میں مردوں کو میں زندہ کرتا مردے ہوں، زندہ کرتا ہوں، کیا لیکن کرتا ہوں؟ حکم اللہ کا ہے وہاں بالکل وہاں بالکل بالکل، مردے زندہ کرتا ہوں، وہی میں بتا رہا ہوں کہ مردے زندہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کس کے اذن سے؟ اللہ کے ہی اذن سے، ہاں سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور کسی کے اذن سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ بظاہر یہ دیکھنے والا تو یہ شخص کہتا ہے کہ انہوں نے زندہ کیا ہے، لیکن کس کے اذن سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اذن سے۔ اب آتی ہے آپ کے سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74، جو آپ نے آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب 73 74، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب اس کے بعد وہاں تک آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب دینے کی باری آگے۔ یہ دیکھیے آیت 73 میں، آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ جی آیت نمبر یہ ہے کہ آیت یہ 73 میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس ضربا میں مثل کبھی بھی فاستمعوا بسم اللہ له پڑھو، ان الذين، میرے بھائی بسم اللہ بول کے شروع کریے چلے کبھی پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضربا مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا ينقذه منه ضعف الطالب والمطلوب، ٹھیک ہے نا، ضعف الطالب والمطلوب۔ ترجمہ یہ ہے، میں ترجمہ، ہاں میں اب میں ترجمہ اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا جن کی بھی، بہت چھوٹا لکھا ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں بلکہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سے کوئی چیز اگر وہ مکھی اڑا لے جائے تو اس سے چھین نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسے چھین نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے آگے میں اب بتانے لگا ہوں یہ آیت کس کے تعلق یعنی سے ہے، آگے وہ تک کے حوالہ، ایسے، میں نے آگے تک کے پوچھنے والا بھی اور دینے والا بھی، دونوں ہاں بھی کیا ہے بول رہے ہیں؟ دیکھیے، مطلب بول رہے ہیں نا ہاں عابد اور معبود ہے، ٹھیک ہے نا، عابد اور معبود۔ اب اس کے تعلق سے میں آیت بتانے لگا ہوں کہ جو آپ آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ اولیاء اکرام کے تعلق سے پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اولیاء اکرام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آیت جن کے تعلق سے، یہ تمام مفسرین، جن کی بھی مفسرین، میں نہ ہی میں اپنی بات کروں گا نہ ہی آپ اپنی بات کریں گے، مفسر جو ہیں انہوں نے مفسر، یہ میں ابن کثیر کا حوالہ میں پیش کرنے لگا۔ ابن کثیر کہتے ہیں، تفسیر میں لکھ لیا آیت نمبر 73 74 کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی، ان کی پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، یہ جاہل جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کی ایک مثال نہایت عمدہ بیان ہو رہی ہے۔
اور بالکل واقعے کے مطابق بیان کی جا رہی ہے. ذرا توجہ سے سنو. ان کے تمام کے تمام بت کون؟ ان کے تمام کے تمام بت ٹھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے سوا شریک کرتے ٹھہرا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائے، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ سارے کے سارے عاجز ہو جائے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے. اور یہ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ یہ کافروں کے تعلق سے ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں پر جذبہ کرتے ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں؟ ایک بخاری شریف کی حدیث میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ آپ کا دعویٰ ہے قرآن و حدیث پہ چلنے کے تعلق سے، کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں نا. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ آیت آپ نے بتوں اور کفاروں کے تعلق سے، کافروں کے تعلق سے مذمت میں جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ مسلمانوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کی. اب میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کر کے پھر میں اپنی بات روکتا ہوں، پھر آپ اپنی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بخاری کا حوالہ دیجیے بھائی. ٹھیک ہے، میں بخاری کا پہلے حوالہ دیتا ہوں، پھر آپ کی باری، آپ بات کریے. ٹھیک ہے نا؟ جی ایک منٹ، میں پہلے وہ بخاری کا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. میں حوالہ بھیج بھی دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو واٹس ایپ بھیج دیتا ہوں. ہاں دیکھیے، میں بخاری شریف کی حدیث نمبر بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6931 نمبر حدیث ہے. اچھا، ٹھیک ہے، 6931. ہاں 6930 نمبر، سوری 6000. 930. ہاں میں آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اوریجنل کتاب کے حوالے بھیج رہا ہوں، اوریجنل کتاب کے حوالے. عربی اور اردو دونوں ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ہے اور عربی دونوں ہے. آپ کو واٹس ایپ پر میں بھیج دیا. ہاں اب میں وہ پڑھ کے سنانے لگا آپ کو. حدیث شریف بخاری شریف کی باب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہوا کہ باب قتل خواری والملدین بعد اقامت حجت علیکم. ترجمہ یہ ہے خوارج اور ملدین پر حجت قائم کرنے کے اور اس کے قتل کرنے، انہیں قتل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. حضرت ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وقانا ابن عمر یروم شرارہ خلق اللہ. اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین کون ہے؟ خارجی فرقے کو لگا. کیوں؟ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ میں نے آپ صحابی کا عقیدہ بتانے لگا ہوں. یہی ان کو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. نہیں میں خارجی بتا رہا کہاں سے بالکل میں بتا رہا ہوں. پوری حدیث تو سن لیجیے، میں پوری حدیث سنا دوں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دینے والا کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا عقیدہ دے رہے ہیں سابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وقانا ابن عمر یروم شرارہ خلق اللہ. اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین خارجی فرقے کو لگا. کیوں؟ انہو انطلقوا الی آیاتنا نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین. وہ آیت جو بتوں اور کفار کے مذمت میں نازل ہوئی ہے، کون آیت؟ جو قرآن میں بتوں اور کفار کے مذمت میں نازل ہوئی ہے، وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوارج کے تعلق سے بہت ساری حدیث آئی. جیسے کہ ایک حدیث میں سنن نسائی کی پڑھ دیتا ہوں. حدیث نمبر 73 سنن نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کا کتا ہے. اور اس بنا پر ہے کہ وہ بتوں اور کفاروں کی والی آیت مسلمانوں پر فٹ کرتا ہے. اور خارجی میں کوئی ایمان والا اتنا بڑا بھی نہیں کر سکتا. یہ میری بات یاد رکھو. جی وہ آپ تو خارجی کو ثابت ہو گئے نا. خارجی یعنی خارجی کدھر سے ہے؟ عراق سے. آپ نے جی آپ نے خود بتوں کفاروں آیت مسلمانوں میں فٹ کر دی، تو آپ تو خود خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. یہ تو ہے، لیکن خارج جو بولو میں عراق کو اللہ کے رسول بدوا دیے تھے. عراق میں وہاں کے خارجیوں کو. اب میں نے بخاری کی حدیث پیش کر دی، اس کی علامت بتا دی، جو وہی علامت آپ میں پائی جاتی ہے بتوں کفاروں لی آیت جو مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے ہیں، وہ خارجی لوگ ہیں. میں کچھ بولوں؟ ہاں بات کریے، آپ بات کریے. ٹھیک ہے. اب میرے کو بتائیے، اگر ٹھہرا کرے تو کیا ہے؟ بدھ ہوگا. مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، پھر سے بتا ذرا. بدھ یعنی یہ ٹھہرا کر کے پوجنے والے کو بدھ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مشرک کی یہ بتائیے آپ،
मुशरिक की तारीफ में क्या है? मुशरिक की तारीफ बोलिए। अभी तो जो बात कर रहे थे उधर से आप हट गए, हाँ नहीं एक हटा जगह नहीं रुक मैं के भाई, बात मेरे करिए को ने। मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं शिर्क और बिदात पे जाता हूँ। मैं कहीं भी लाख बात कर लेने दे, हाँ मैं तो मैं भी शिर्क तो और वहीं पे बिदात रोक पे रहा हूँ आता हूँ। आपको, तो आप तो मुशरिक मुशरिक पर किसको चले गए। बोलते हैं? मुशरिक आप तो किसको दूसरी बोलते हैं? जो शिर्क करते हैं, हम्म? जो अल्लाह की जात और सिफात में दूसरे का शरीक करते हैं, मुशरिक करते हैं। बदतमीजी मतलब उसकी तारीफ पूछ रहा हूँ मैं। अल्लाह के बराबर समझना या अल्लाह के जो बराबर अल्लाह के बराबर नहीं, जो अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करते हैं, शरीक करे, वो मुशरिक है। ठीक है, पक्की बात है ना? चलिए ठीक है, पक्की बात है। ये बात आप तस्लीम कर लिया माशाल्लाह। तस्लीम तो हकीकत बात है ना, चलो तस्लीम क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करना। नहीं तो मन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे को अहले खुशी हो रही है सुन्नत आपसे व बात कर। जमात सुनिए सुनिए से सुनिए बड़ा तौहीद मेरी बात कोई सुनिए, तौहीद इलाह कोई है ही नहीं। एक बात अब सुनिए आपकी मेरी। मैं बारी, आप पेश आपसे करिए। आपसे कुरान भी सुना हूँ माशाल्लाह, आपके पास से एक हदीसा भी सुन रहा हूँ। आप आलिम हैं या ठीक है, हाफिज है? मैं हम्म। एक तालिबे इल्म हूँ मैं। नहीं यार उतना तो नहीं हो सकता इंशाल्लाह। आप एक हाफिज होंगे या आलिम हो सकते हैं। आलिम नहीं, सुनिए मेरी चलिए बात, तालिबे इल्म हूँ। ठीक है, आप बात करिए। ठीक है? जो भी है आपके पास अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप इसको थामे रहेंगे, इसको लेके बिल्कुल चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए जन्नत है। अल्लाह जन्नत आपकी नस्ल, इंशाल्लाह मेरी दुआ तो ये है कि आपकी नस्ल क़यामत तक चले, आप उसके इमाम बने। ये ख्वाहिश है मेरी। लेकिन आपका जो अकीदा है उसको अगर चेंज कर लें आप, जैसा कि आप जो खबरों के ताल्लुक से जो ताल्लुक से आपने है वो चीजें अगर निकाल दिए, वो सिफारिश कराने वाले हैं या बख्शवाने वाले हैं, जो भी है, कुरान में कहीं भी इजाजत तो नहीं है इसकी। अल्लाह के रसूल की हदीस है आखिरी कि लानत हो यहूदी और नसारा पर जिन्होंने अपनी अंबियाओं की खबरों को इबादतगाह बना लिया। किताब से बात आप करिए ना, वो तो जो आवाम सुनिए जो सुनिए आपने सुनिए हदीस पेश सुनिए कर रहे हैं ना, मेरी मेरी वो मेरी हदीस बात बिल्कुल सुनिए। सही है। एक मिनट सुन लीजिए, हदीस जो आपने हदीस पेश की ना, वो आप बिल्कुल सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है कि जी लानत है यहूदी और नसारा पे जिन्होंने अपने कब्रों को सजदागाह बना लिया। हदीस बिल्कुल सही है, मुस्लिम में भी हदीस है, इबादत वो मैं सजदागाह बना मानता हूँ। लिए, और अल्लाह के रसूल ये भी लेकिन दुआ एक करे बात कि याद मेरी रखिए। खबर को कभी सजदागाह ना बनाना, बोल के अल्लाह ताला से दुआ करे। अल्लाह ताला आज भी ठीक उनकी है, हिफाजत बिल्कुल कर रहा, बिल्कुल सही है, आज भी लेकिन हम हिफाजत तो हो कोई रही। बना नहीं रहे। लेकिन आप सुनिए, ठीक है। मैं ऐसी कई मज़ारें देखता हूँ मैं जहाँ पे लोग जाके सिजदा करते हैं, वहां से उनसे सिफारिश कराते हैं और अल्लाह के बराबर समझते हैं। जैसा कि अब्दुल कादर गिलानी अल्लाह के यानी अब्दुल कादर गिलानी रहीमुल्लाह, मैं उनको अकेले को रहीमुल्लाह कहता हूँ। मैं उनको अकेले को, क्योंकि मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके शागिर्द लिखे या जो भी लिखे, कौन हुर्रियतुत सी किताब पढ़ी तालिबीन आपने पढ़ा उनकी? हूँ, हुर्रियतुत तालिबीन। तो गुलत और जो तालिबिन तो आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे तो वो ताबीज बनाने का थे। आप तो ताबीज को शिर्क कर रहे, वो तो ताबीज बना के दिया करते थे। नहीं नहीं आप नहीं उनको नहीं, रहमतुल्लाह ताला बोले। ताबीज का नहीं है ताबीज क्या का। आप बात कर रहे बताइए, आप हवाला डालिए मेरे को, मेरे हैं? पास जी खुद, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी डालता हूँ, मेरे फोटो मेरे पास खुद रखी हुई है। ओरिजिनल किताब के हवाले है, मैं जबकि हवाले अभी देता हूँ। सुनिए, अल्लाह ताला ताबीज बांधने वाले को मुशरिक बोले और अल्लाह के रसूल कलमा भी नहीं पढ़ा है लोगों को, कलमा भी नहीं पढ़ा है। क्या ताबीज पढ़ते हैं बांधने, आप लोग? सुनिए सुनिए सुनिए, अल्लाह के रसूल, बुखारी की हदीस है ना, आप तो बुखारी हदीस तो जानते हैं। अल्लाह के रसूल के पास 11 लोग ईमान लेने के लिए आए थे, ईमान लाने के लिए, बैत करने के लिए आए थे। तो अल्लाह के रसूल 10 को पढ़ा, एक को छोड़ दिए। बोले कि इसको मैंने बोला अल्लाह के, तो हम सब आए आपके पास पढ़ाने के लिए, तो आप कलमा नहीं पढ़ा रहे। तो बोला कि नहीं, उसके गले में तमीमा है। बोले ठीक है। फिर और एक दफा एक यहूदी भी आया तमीमा था, किसे कहते उन्हें हैं? भी ताबीज को कहते हैं? ताबीज को कहते हैं तमीमा। ऐसा तो नहीं है, कहीं पर लिखा, कहाँ पे आपने पढ़ा था तमीमा को ताबीज कहते हैं? डालता हूँ मैं, आपके व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ। फिर ठीक है, आप डालिए, मैं वो हवाला कुलौज देता फलक हूँ में क्या गुरत है? तालिबिन का। सुनिए सुनिए सुनिए, कुलौज फलक में क्या है? कुल ग्रहों पर अऊज़ु बिरब्बिल फलक फलक मिन मिन शर्रि गासिकिन इज़ा शर्रि मा वक़ब। खलक। तो उसमें क्या है? उसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रहों पर पढ़ पढ़ के फूकने वालों से बच्चों बोल के है अल्लाह ताला। ग्रह बोलते किसको बोलते हैं? घीटी को बोलते, ताबीज को बोलेंगे ना। अरे फिर अल्लाह, गिरा और ताबीज में कहा, गिरा और ताबीज में बहुत नहीं जमीन मेरे प्यारे आसमान का भाई, फर्क वो है। चीज को समझने के लिए आपको फिर कुरान हदीस को भी देखना पड़ेगा, फिर कुरान को भी देखना पड़ेगा। ग्रह बिल्कुल कहते देखना हैं पड़ेगा ना, घीटी, बिल्कुल देखना घीटी पड़ेगा। घीटी नहीं, ग्रह माने घीटी, घीटी मारने वालों से बचो। मतलब क्या लेंगे उसका मिसाल? ताबीज की लेंगे ना आप? ग्रह कोई और चीज को बांधी जाती क्या? नहीं ना। यहाँ पे तिरमिजी में हदीस है 3528,
35 28 है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला खुद गले में ताबीज लटकाया करते नहीं, थे गलत जो बात, बच्चे नाबालिग थे। गलत। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक नहीं 3 तो मिसाल जामे है। तिरमिजी में मिसाल नहीं, आप सुनिए, सुनिए, जामे तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 35 28 है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वो रज़ी हदीस अल्लाह ताला ज़ईफ है, अन्हु। वो हदीस ज़ईफ है। कौन बोलते भाई सुनिए मेरे जनाब, भाई, वो हवाला भी सुनिए। मैं भेज रहा हूँ आपको। मैं आपको एक नहीं 3 दलील दे सकता हूँ, बुखारी से भी और इब्ने माजा से भी, इंशाल्लाह इब्ने माजा वो आप दीजिए, या इब्ने मैं दाऊद अभी से तक दे तो सकता हूँ, तकरीबन या हमने बाप से बात की। सुनिए, मुस्लिम ठीक से है, दे सकता हूँ इंशाल्लाह मैं, कि अल्लाह के रसूल तीनों को कलमा पढ़ाने से आप इनकार करे, जबकि वो लोग तावीज गले में से निकाले तब आपने उनको कलमा पढ़ाया। ठीक है, फिर अब और वो एक आपने हदीस, कहाँ पे नहीं पढ़ा सुनिए, है कि तमीमा और को आपने ताबीज नए कहाँ पे पढ़ा? हालांकि तमीमा का माने ताबीज नहीं होता है। मैं आपको हदीस मैं आपको दे देता हूँ। अभी आपने कौन से लोगत में पढ़ा है तमीमा के माने ताबीज? किसी का भी तर्जुमा तो माना नहीं जाएगा, ठीक है ना? आपने तमीमा, किसी का भी तर्जुमा दे यानी देंगे। तावीज को कहते हैं, तावीज अपने पास तावीज बोलते हैं, अरबी लैंग्वेज में जो है ना तमीमा कहते हैं इसको, समझे। और एक बात सुन लीजिए मेरी, अल्लाह के रसूल की और एक हदीस बताता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, एक ऊँट कुछ बीमार हो गया, कुछ चारा वारा नहीं खाता, तो आप उसके गले में एक पढ़ के घीटी बांधी और सूरह फातिहा पढ़ी इसको, तो जानवर अच्छा हो गया, बल जो भी होगा। तो उन्हें वो जो जिसके पास ऊँट था वो दूध दी, तो आप दूध दे के आके हजरत अली रज़ी अल्लाह को देते। तो अली रज़ी अल्लाह जो ना, आज आप पी के आज अल्लाह के रसूल के पास आते, बोलते कह ली ये क्या है? बोले अल्लाह के रसूल ये दूध है। बोला कहाँ का है? ऊँट का। बोले कि मैं ऐसा कर दिया था तो उससे शिफा हो गई, और वो जो है ना मेरे को दूध ला के दिया। तो अल्लाह के रसूल वो दूध को फेंक के ये बोलते कि अली तूने अपने पेट में आग भरी, बोले तो आप जाते हलक में उंगलियां डाल के पहले का भी निकाल देते, जो पहले जो भी खाए थे ना उन्होंने, वो भी हलक में उंगलियां डाल के निकाल देते, निकाल के आके बोलते अल्लाह के रसूल ने निकाल दिया। बोला कि ठीक है, इस पे कायम रहे, बोले, समझे भाई। तमीमा बहुत गलत चीज है। अल्लाजी युवस्विसुफीसुदीना, जो क्या बोलते हैं, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब का जो मानी आ रही, वो आप देखिए एक बार मानी। अरे मैं एक फिर अल्लाह हवाले ताला, देने लगा था आपको, भूल गया था। एक हवाला मैं दे देता हूँ, फिर वो बात नहीं, फिर वो उस पर हवाला आते मत हैं। दो भाई, वो हवाला मत दो, वो कुरान से भी कर जाती, हदीस से भी कर जाती। नहीं नहीं और नहीं, तावीज के मुतालिक नहीं, तावीज के तावीज के मुतालिक नहीं मैं ताल्लुक से हवाले दे फिर रहा और हूँ। एक बात कह रहा हूँ, सुनो, तावीज के ताल्लुक से एक और एक बात कह रहा हूँ मैं आपको। शैतान तावीज ने पे बात वादा, कर लेते हैं, तावीज पे बात कर लेते हैं। एक हवाला सुन लीजिए, मैं बहुत बेहतरीन मुझे हवाला मिला था, एक जी हवाला सुन तो ले। जी ये इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला की किताब है कि अल मुस्तदरक किताब है। देखो, नहीं, ये वो रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं सुना मेरे को, बात मैं दो किच करता हूँ। अरे भाई एक मिनट सुन तो सुनिए ले, मैं सुनिए हदीस सुनिए सुनाने लगा नहीं हूँ, नहीं, एक हदीस सुन सुनिए ले। नहीं आप नहीं, अपनी सुनिए बात सुनिए कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। एक हदीस जी तो सुन ले, आप अपनी बात करिएगा कंटिन्यू, मैं आपकी बात रोक नहीं रहा हूँ। एक हदीस सुना के बात खत्म करूंगा, जी आप जी बात जी करिएगा। ये हदीस जी इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल मुस्तदरक अल सहीह जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर 79 है, किताबुल ईमान में। हम्म हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इरशाद फरमाया हम्म कि छह आदमियों पर लानत करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 आदमियों पर लानत करता हूँ, अल्लाह ताला भी उस पर लानत करता है, ठीक है ना? तो उन 6 आदमियों में से लानत करता है, पहला तकदीर का इनकार करने वाला, ठीक है ना? दूसरा कुरान पाक में इजाफा करने वाला, ठीक है? तीसरा ऐसा मनसब जो बाइज्जत लोगों को जलील करने वाला और जलील लोगों को इज्जत देने वाला, देने अल्लाह वाला, ताला भी लानत अल्लाह करता है बचाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लानत करते हैं, ठीक है? जी 3 जी, हो गए। चौथा, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज को हलाल हलाल करे, समझे, ठीक है? आमीन अल्लाह। ये 5 हो गए। और चौथा, हम्म अब 5वें पर आ रहा हूँ। 5वां, हम्म मेरी आल से बुग़्ज़ रखने वाला, हम्म उस पर किसकी लानत है? अल्लाह की और अल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम की, की, ठीक है ना? आमीन। हाँ, मैं भी आमीन कर रहा हूँ। अल्लाह की लानत भी आमीन बोल रहे। और मैंने सजा पढ़ के सुना है सरकार ख्वाजा गरीब को, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, और आपने अपने पर लानत की है।
ٹھیک ہے نا. چلیے اب آپ بات آگے کریے. جی چلیے آپ بات آگے کریے. آپ نے تعویذ اپنے پر لالچ ایک کیے. ایک 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 آپ سے چھوٹی مثال لے رہا ہوں میں. آدمی جب تعویذ گلے میں ڈال دیتا یا کوئی بن کے ڈال دیتا تو اس سے اس کا بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ ختم ہو جاتا. تعویذ پہ رہتا، وہ جتنی چاہے رات کو جہاں چاہے چلے آ رہتا ہوں، چلے آتا ہوں. حالانکہ ڈرتا لیکن چلے جاتا ہوں. کیوں؟ اس کو تعویذ پہ بھروسہ ہوتا. سن رہے ہیں؟ اللہ پہ ختم ہو جاتا، تعویذ پہ ہو جاتا. تو اس لیے، اور شیطان کا وعدہ بھی ہے اس پہ. شیطان اللہ سے وعدہ کر کے ہمیں کسی اور کا وسیلہ نہیں لگایا، ڈائریکٹ اللہ سے وعدہ کر لے کے دنیا میں آ کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ان کو چیخ و پکار سے، ان کو چیخ و پکار سے جو ہے نا میں ان کو بھٹکاؤں گا. بلکہ انہیں سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے لیا، کسی اور کا نہیں لگایا وہاں پہ. فرشتوں کا، ان کا کسی کا وسیلہ نہیں لگایا، ڈائریکٹ اللہ سے منگاؤ. اور اللہ نے اس کو اجازت دے دی. صحیح بات ہے نا؟ یہ قرآن کے چلیے اب الفاظ. میں بات کروں. جی اب میں دو بات کرنے لگا ہوں. جی یہاں پہ دو بات کرنے لگا ہوں. مدد تو جی پھر کل بات کریں گے انشاءاللہ. آپ مرضی آپ کی. جاب میں جب بھی فری رہا، آپ میں سے میں بولا نا رات کے 3 بجے تک بھی آپ چلیے کرے تو دوستان رہتے میرے ساتھ. چلیے کوئی مسئلہ نہیں. جی ابھی جی فی الحال آپ نے کہا تھا قنوت طالبین میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں میں قنوت طالبین کا حوالہ میں آپ کو اوریجنل کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں. شب جی برات کے رات کی نماز پڑھنے کو آپ کے علماء بدعت کہتے ہیں، آپ بھی بدعت کہتے ہیں. ہاں آپ کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن شب برات کے تعلق سے حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ باندھا ہوا ہے ان کے تعلق میرے سے بھائی پورا. آپ ایک آپ سن حافظ لیں، بھی ہے، کچھ عالم بھی ہے آپ. جو میری بھی ایک سن بات لیں. سن لیا کرو کہ رضی جی اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ جن سے اللہ راضی ہے. اور رضی اللہ اللہ کے عنہ رسول، ورضوان. سنو اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ پہ بیعت کیا، ایمان لایا، اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. صحیح طریقے سے آپ سمجھو بات کو. اللہ راضی تو ہے، قرآن میں بول دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضو اللہ تعالیٰ راضی ہو. لیکن رضی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے رسول رضی پہ جو اللہ ہاتھ. عنہ ورضی اللہ رضوان عنہ اور ورضوان. رضوان. کیا اللہ ولیوں سے راضی نہیں؟ یہ تو بھائی میری بشارت بات ہے. وہ سنو تو میری بات سنو میرے پیارے بھائی. وہ جو آپ بتا رہے ہیں جو نا رضی وہ اللہ کا جو بشارت. معاملہ، سنو رضوان، رضی اللہ جس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول پہ ہاتھ پہ بیعت کر کے ایمان کہاں لایا، لکھا اس ہے کو کہا رضی جاتا ہے؟ اللہ. کہاں کہا جاتا ہے بتائیے؟ کہاں پہ لکھا ہے آپ بتائیے؟ ڈالتا ہوں میں، وہ بھی ڈالتا ہے ہوں. پورے قرآن میں کہیں؟ پورے قرآن میں ہے کہیں پر؟ کیا بول کے؟ نہیں نہیں پورے نہیں، قرآن حدیثوں میں، حدیث میں ہے کہ اللہ جی کے بتائیے، رسول حدیث ہاتھ میں پہ بتائیے. جو بیعت کرا اسی کو جو ہے نا رضی اللہ کہتے جی ہیں. اللہ راضی اسی سے ہے جو اللہ کے کون سے رسول سے حدیث میں بیعت کر بتائیے کے کہ صرف ایمان لایا. صحابی، میں کون سے ڈالتا ہوں، حدیث میں لکھا ہے کہ صرف میں صحابی رسول کو رضی میں اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا؟ میں ایک حدیث ڈالتا بتا دیجیے. ہوں، میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. جی کتاب کا سنیں، نام بتا دیجیے. رضی اللہ ان کو میں نے کہتے ہیں. ابھی کوئی لیکن حدیث نہیں پڑھی آپ جہاں پہ آپ لکھا جس ہے کو نا. سمجھ میں اس کو رضی اللہ، جس کو جو بھی اب میں بتانے مذاہب لگا دکھ ہوں، گئی، سنیے. جو بھی مذاہب رضی دکھ گئی، اس اللہ کو رضی تعالیٰ اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، جس سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، وہ راضی رضی اللہ تعالیٰ ان کو لگایا جائے گا. اللہ کے ولی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہا نہیں جائے گا. کہتے کیوں؟ یار، نہیں کہتے یار، نہیں. اب آپ کے پاس، ولی نہیں اب سن بولو یار، لیجیے، ولی نہیں بولو. اللہ کے واسطے ولی نہیں آتا، ولی نہیں آتا. ہے آپ کے پاس اللہ کوئی کے دلیل ہے؟ ہے انشاءاللہ ڈالتا ہوں میں، انشاءاللہ آپ کو بھی تو وہی تو میں آپ ڈالتا کا ہوں میں. انتظار کر رہا ہوں. میں آپ ٹھیک ہے سے تو وہی انشاءاللہ. انتظار کر رہا ہوں اتنی دیر سے، تو آپ کوئی دلیل نہیں دی ہے. بہرحال یہ شب برات کی رات کے تعلق سے سرکار شب غوث پاک برات رضی کا اللہ بھی کہیں تعالیٰ. دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں ہم نے تو ان اپنے کو قنوت طالبین نے 7 مانا ہے، آسمانوں آپ کی ان کو سیر نصرت کرائے، اللہ بھی کہہ رہے ہیں. وہاں کیا کیا معاملہ ہوا، وہ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول بیان کرے، پھر بھلا تو بھی دیے جناب بولے. سن لیجئے، جناب سن لیجئے. تو یہ تو کتاب میں لکھ رہے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ تو ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو معاذ اللہ بدعتی تب کہنا چاہیے. آپ ان کو بدعتی کہنا چاہیے نا. شب برات کی رات کا تو باپ باندھ رہے ہیں. میں اوریجنل کتاب کے نہیں حوالے نہیں میں آپ نہیں کو نہیں بھیج دیتا ہوں. نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے میرے پیارے، نہیں ہے. رکیے، واٹس ایپ پہ آئیے، واٹس ایپ پہ آئیے ذرا. تو آپ واٹس ایپ پہ آئیے، دیکھیے میں نے حوالہ میں نے آپ کو بھیج دیا. واٹس ایپ چیک کریے ذرا. قنوت طالبین اردو. ہاں جی، واٹس ایپ پر آئیے، واٹس ایپ پر آئیے آپ. ابھی میں تعویذ کا بھی حوالہ دینے لگا، وہی اسی کتاب سے دوں گا. واٹس ایپ پہ آئیے، آپ چیک کریے، ابھی ابھی حوالہ ابھی دیکھیے. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے چیک کریے. بھیج دیا میں نے حوالہ. میں نے پہلے بھیجا ہے تو پھر بولا آپ کو.
دیکھیے ابھی میں اور بھی حوالے، میرے پاس پوری کتاب ہے کنوت طالبین۔ طالبین ہے نا؟ ہاں جی، کونے میں دیکھیے کیا لکھا ہے، کونے میں دیکھیے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ پڑھ رہا ہوں ذرا جی پڑھیے۔ اس پہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ 10 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 10 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جی اور کون سی کتاب آپ بتائیے پہلے، ابھی تو آپ ان کو رحمت ہاں، تعالیٰ نے قنوت بول رہے ہیں، طالبین پھر ہے آپ نا؟ ان کو بدعت۔ جی آپ پڑھ لیں، کونے میں کیا لکھا ہے کتاب میں، دیکھیے قنوت میں آپ کو طالبین اسی ہے، کنوت طالبین کا، جی 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 سورہ جی فاتحہ اب 10 دیکھیے بار پڑھی جاتی ہے نماز میں، کیا، سورہ فاتحہ 10 بار پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کون سی کتاب بھیجا آپ بتائیے، اور کہاں پہ لکھا سورہ فاتحہ 10 بار لکھا ہوا ہے، آپ ہر پڑھے رکعت پہلے میں بتائیں 10 بار۔ کہاں لکھا ہے؟ آپ دیکھیے نیچے جائیے، شب برات کی نماز جو لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے ایڈ کی پڑھیے، گئی ہے یا بدعت طریقے سے ہے پتا نہیں، پڑھیے۔ یعنی ہر رکعت میں 10 بار، ہاں پڑھیے، کیا لکھا 10 ہے؟ بار قل هو ہاں اللہ کیا ہے؟ احد پڑھیں۔ اس کی ہاں نماز میں سورہ کہاں سورہ فاتحہ فاتحہ؟ ہاں سورۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ ہاں اس کی برکت پھیل جاتی ہے، اور پہلے زمانے میں بزرگ یہ نماز بجماعت ادا کرتے اور اس کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس کی فضیلت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ نے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان فرمایا کہ ہر جو شخص اس رات یہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرف اس کی طرف 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، حاجات پوری کرتا ہے، 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے، 70 حاجات پوری کرتا ہے، اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری کرتا ہے۔ حاجت پوری کرتا ہے۔ ارے استغفر اللہ بھائی، کون پڑھتا بھائی 10 بار کھل رہا؟ ارے استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ تو مجھ سے گزر گئی تھی، میں پڑھ رہا تھا ورنہ یہ کبھی میرے بولے تھے سالے میں نہیں نہیں پڑھے تھے، نہیں یار، یہی یہ تو بات ہوتا ہے جب یہ بات بزرگ یہ آگے دل سے بھٹکتے نہیں انسان نے تو استغفر اللہ دیکھو پڑھتے۔ اب سنو، آئیے، جب آدمی کی نظر اچھا قرآن کون سی حدیث پہ کتاب میں نے ہوتی بھیجی آپ تو کو؟ ایسی چیزوں کا پہلے رد کر دیتا میں کیا بولا، میں رحمت سنیے العالمین بولا، میں سنیے، نے کل وہ رحمت کیا کہہ العالمین رہے بولا۔ آگے، سنیے وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ روایت ہے کن سے کن، انہوں نے آگے صحابی سے بھی روایت کی ہے، آپ آگے پڑھیے، آپ نے خود پڑھ کے سنایا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پڑھا ہوں 30 صحابہ ہے سنیں؟ نا، ہاں 30 تو صحابہ آپ سے تو انہوں صحابہ کو نے بھی فرمایا، ٹھکرا دیے لیکن اللہ معاذ کے اللہ۔ رسول کی نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں میں ہے، نہ کہہ رہا کہیں ہوں میں نا، بھی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بات تو کریے، آپ سب کو انکار کریں گے، سب کو آپ ہاں انکار کریں گے، میں نے کہا نا کہ بالکل آپ صحابہ کو بھی نہیں مانتے، ابھی آپ سب کو انکار کریں گے، کیوں؟ میں اسی گنت طالبے کا دوسرا بھائی، حوالہ میں پھر بھیج دیا جو ہوں، قرآن لکھا حدیث ہے سے کہ ہٹ کے سبے رہیں گے، برات، سنو، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے رہیں گے تو کتنا بڑا بھی عالم رہا تو ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے نا۔ تو میں تو بول رہا ہوں، وہی تو میں ثابت کرنے والا ہوں کہ آپ سب کو چھوڑنے والے ہیں اور سب کو چھوڑیں گے، حتیٰ کہ میں یہاں تک انشاءاللہ ثابت کر دوں گا، حتیٰ کہ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں ایک ذرہ برابر نہیں جھوٹ بول رہا ہوں کہ آپ اللہ کو بھی نہیں مانیں گے، نہیں مانتے، میں یہ بھی ثابت کر دوں گا اور نہیں ابھی وہ ثابت کروں بات گا، زندگی میں انشاءاللہ یہی میری ثابت کروں گا، زندگی جب تک ہے قیامت تک، اگر میرے سے پہلے میری قیامت آ ذمہ رہی داری ہے نا، میں میری اس ذمہ کو بھی داری ہے انکار ثابت کر کرنے دوں گا۔ کی۔ میں آپ کو انشاءاللہ رحمان خبروں کی پوجا سے اس سے میں انشاءاللہ رحمان آپ کو پورا دور کروں گا۔ ارے جو میں آپ نے کبھی دعویٰ خبر کیا پہ ہے نا، جائیں گے، سنیے، آپ جو خبر پہ آپ نے جائیں گے دعویٰ، تو انشاءاللہ ان کی رحمت کے لیے ان کی اگر وہ مشرک ہے تو جنت حرام ہے، اگر وہ کوئی مشرک ہے، کوئی ولی اگر مشرک ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی مدد طلبگار کرنے والا یا حاجت روا سمجھ کے کسی اور کو پوجنے والا، کتنا بڑا ولی بھی رہے گا وہ جہنمی رہے گا وہ انشاءاللہ چھوڑ رحمان۔ دیجیے، وہ چھوڑ دیجیے، وہ نہیں دوسری طرف جا رہا ہے، مین مقصد پہلے سنو، تو اپنے، آپ کا نام بھائی، آپ کا نام میرا نام صادق علی انصاری ہے، اب صادق مجھے علی بولنے، انصاری مجھے صاحب۔ بات کرنے تو دیں، مجھے بات نہیں تو آپ کرنے دیں، سنو ابھی میرے کو تین یا 4 فون آ گئے میرے کو گھر سے، میں تھوڑا گھر 2 سے منٹ باہر بات آیا کرنے تھا۔ دیں گے، 2 منٹ ہاں بات کرنے دیں گے، ہاں مشکل ہے، کرو 2 منٹ 2 کرو منٹ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، میں نے اسی گنت طالبین کا ایک صفحہ میں نے آپ کو اور بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں ہوں صفحہ نمبر 444 کا گنت ہوں طالبین ہے نا، لکھا ہوں ہے آپ تو وسیلہ کو مانتے نہیں، لیکن وسیلہ کا باپ باندھے ہیں حضرت ہوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، صفحہ نمبر 444 پر پڑھ لیجیے، ہاں
शब बारात की फजीलत के ताल्लुक से भी यहाँ पे बाब बांधे हुए हैं। मैंने दूसरा हवाला मैंने भेजा, क्या कैसे कैसे पढ़ना, पूरे फजाइल और लेकिन पूरे उन्होंने, तरीके वहाँ पे। सुनिए, उन्होंने एक बार सुन ये तो भी ले। लिखा है भाई, ये चीज अभी तो मेरी नजरों से नहीं गुजरी, अभी फिर इंशाल्लाह फिर रिमाइंड करता हूँ मैं उसको, मेरे पास मुझे सही बोलने किताब दे है। आप, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका हाँ भी बोलिए, जवाब दूंगा। हाँ बोलिए। शब बारात की फजीलत के ताल्लुक से मैंने आपको हवाला मैंने भेज दिया, आप देख ले अपने जी मोबाइल पर। सफा जी। नंबर 444 का वसीले के आप लोग मुनकिर है, वसीला आप मानते नहीं, आप कहते हैं वसीला नहीं। शिर्क है। लेकिन वसीले के ताल्लुक से सरकार हम्म, गौसे पाक ने बाप बांधा हुआ है, देख लीजिए सफा नंबर 444 पर। मैं हम्म, पूरी किताब पढ़ के आपको सुना दूंगा। अच्छा। और शब बारात की फजीलत भी, शब बारात की फजीलत भी बयान की है, और ये हदीस से भी साबित है। अगर आप कहें हाँ, शब बारात की फजीलत के ताल्लुक से हदीस आप मांगते हैं तो मैं हदीस भी पढ़ के सुनाऊंगा। आप अच्छा। मांगे तो मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा, आप कहिए नहीं नहीं, अभी क्या नहीं, नहीं अभी सुनाओ। नहीं, मैं हाँ आपको अगर टाइम है ठीक है, अभी आप नहीं। बात खत्म करते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं आ गया, फिर ठीक इंशाल्लाह है, कल बात करेंगे, कल ईशा के बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट रुकेंगे जरा। हाँ बोलिए। आप चलिए अंदर, तो सारी बातें तो हो गई, अभी तो बहुत सारी बात करनी है, इंशाल्लाह फिर वो बात इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह करेंगे। करूंगा, इंशाल्लाह रहमान, मैं जहाँ तक कोशिश करूंगा आप खबर पे जाएंगे तो खबर जिसकी खबर है उसके लिए, रहमत के लिए दुआ करेंगे, आप अपने लिए नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वो सब कितनी बड़ी बात मजाक तो नहीं यही है है, वो इंशाल्लाह ठीक है, रहमान, कौन किसके लिए क्या करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो रहमान। सारी बातें की जाएगी। एक बातें मैं करके खत्म करता हूँ। हम्म, जिनको आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं कि वो तो खुद उनकी बातें आपके खिलाफ हो गई, वो तो हम्म। बातें चलेगी। जिनकी बातें आप मैं पेश करूंगा ना, सारी आपके खिलाफ ही बातें जाएगी, नहीं कर किसी की सकती बातें आप यार, में मिलेगी नहीं नहीं। कर सकती, एक बात मैं नहीं। करके खत्म कर लेता हूँ, मैंने पेश हाँ किया है, वो सारी चीजें मैं पेश किया। हाँ ठीक, ये देखिए मैं उसका हर किताब। एक का इंशाल्लाह रहमान, आप जो जो भी डाले हैं उसका जवाब मैं सिर्फ कुरान से दूंगा या इंशाल्लाह फरमाने रसूल हदीस से दूंगा ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ तो देखिए ठीक। ये आपके नासिरुद्दीन अलबानी साहब की किताब है, सिलसिले हम्म, आदित सैया, किताब है हम्म, उनकी, हम्म, जिन्होंने हम्म, इनका सही हदीस जमा करने के लिए किताब बनाई है। किताब का नाम हम्म, है सिलसिला आदित हम्म, सैया के नाम से, है ना, जी जी अलबानी साहब ने। जी। सफा नंबर 595 पर एक हदीस नकल करते हैं, और हदीस हाँ नंबर 1160 नंबर हदीस, जी 68 नंबर हदीस नंबर नकल करते हैं, ठीक है ना। जी। वो क्या लिखते हैं, हाँ शब बारात के ताल्लुक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ठीक। ताला के निस्फ शाबान की रात अपने मखलूक की तरफ झुकने और तमाम मखलूकात को बख्श देने के माऊर शिरक करने के बाद जो शिरक करता है उसके अलावा तमाम को बख्श देता है। सही हदीस हम्म, है, और हाँ सिलसिले ये ये भी तो अल्लाह हदीस का मैं वादा हवाले है। देता हूँ। नहीं नहीं, हैं? ये तो अल्लाह का वादा है ना, हाँ तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क को नहीं करूंगा बोल कर, तो अल्लाह का वादा है हाँ, ना कुरान में। ये तो शब बारात की हाँ, फजीलत, आप तो शब बारात को बिदअत करते हैं। नहीं 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 नहीं। कहते हैं शब बारात को चलो बिदअत, वो ठीक है, हवाला इंशाल्लाह मैंने मैं भेज आ दिया है। गया घर पे, फिर करता चलो हूँ मैं मैं हवाला इंशाल्लाह। भेज दिया आपको, चेक कर लेना, ठीक है, सारे ठीक है, हवाले मैंने ठीक आपको ठीक भेज दिए। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ और मैं कुरान से ही दूंगा इंशाल्लाह रहमान। मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है। ठीक है। चलो।